Thakkar, and all participants who is joined the virtual meeting. This is our 10th virtual meeting of statistical for financial year 2021-22. Today's topic is a recent judgment, important judgment in the GST. Now I welcome, now I request Rakesh Parekh for the introduction of the today's faculty. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. હવે આજે મને એકચ્યુઅલી બ્રિજેશભાઈ નું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું કીધું છે. આઈ થિંક કદાચ મારું ત્રીજું બ્રિજેશભાઈ નું જ ઇન્ટ્રોડક્શન છે અત્યાર સુધી સ્ટડી સર્કલમાં. જનરલી હું બોલું છું ઓછો, પણ મારે જ્યારે બોલવાનો મોકો મળે છે ત્યારે બ્રિજેશભાઈ વિશે જ બોલવાનું થાય છે. બહુ આનંદ છે એનો. CA Brijesh Thakkar has cleared his CA exam in 2007. He is a national rank holder in CA exam. He worked with Deloitte and EY. He is expert in the area of indirect taxes, IFRS, and accounting standards. He has addressed more than 150 seminars, conferences on GSTs for chartered accountants, tax practitioners, and revenue officers. He has authored 2 books on GST, which is widely used by professionals. His main area of work is GST, litigation, and consultancy. He has successfully represented clients in appellate proceeding in Gujarat, Rajasthan, Karnataka. He gives written opinion on GST matters to the clients of many chartered accountants. He regularly contributes articles to magazine Karvera Salakar and TMI, a renowned taxation portal used by professionals across India. Recently, he represented client of one of the CA at Gujarat Authority for Advanced Ruling, and this ruling AAR reversed its earlier stand on the same issue. This ruling is also reported on TMI. Now I request Sri Brijesh Thakkar to give his view on today's topic. Thank you very much. Thank you very much, Rakesh bhai. First, I need to congratulate every one of you. તમારી બધાની જે ટીમ એફર્ટ્સ છે, જે ગ્રુપમાં રિમાઇન્ડર્સ આવે છે, જે પ્રોગ્રામ્સ થાય છે, before the beginning of the month you are giving the schedule. So really it is a commendable efforts. So congratulations to the team efforts. So BK Chavda sir, Chintan Thakkar, Rakesh bhai, Rumil, everyone. Now coming to the today's topic. The topic is recent judgments on GST. So should I share my screen? Yeah. It is allowed. Okay. So मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, it's all right. Okay. So what I have done is कि इसको ज्यादा एकेडमिक ना करते हुए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, जहां पर कंट्रोवर्सीज है, जहां पर फाइनल चीजें डिसाइडेड नहीं है, ऐसी चीजों को ज्यादा एलोबरेट ना करते हुए जो मेरे ओपिनियंस है, जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कुछ बेनिफिट मिल सकता है और क्लाइंट्स को कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है, और कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है फॉर द क्लाइंट, उसकी हम लोग बात करेंगे. सो सम ऑफ द जजमेंट्स आई हैव लिस्टेड डाउन. कुछ जजमेंट्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स. अगर कोई क्वेरी है आपको तो बीच में ही हम लोग उसको डिस्कस कर पाएंगे. अदरवाइज एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन दैट. ये जो सबसे पहला जो जजमेंट है उसको मैं सबसे आखिर में लूंगा. पहला यहाँ पर लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में इसलिए लेंगे इसको क्योंकि हो सकता है कि इसको हम लोग डिस्कस करें ना करें, वो आपके ऊपर है. आई विल फर्स्ट टेक योर परमिशन, ओनली देन आफ्टर आई विल टेक दिस जजमेंट. सो सेक्शन वाइज वी विल गो. सेक्शन वाइज जाते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस है, क्या क्या आंसर कोर्ट ने दिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 16. हम लोग सेक्शन 16 से स्टार्ट करते हैं. जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, एक चीज हम सबको पता है कि भाई
there is a concept of seamless flow of credit. क्रेडिट सीमलेसली फ्लो होनी चाहिए, वन नेशन वन टैक्स, ऐसा एक कॉन्सेप्ट जिसको अचीव करने के लिए हमने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तब सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट और ऑटोमेटिक मैचिंग ऑफ जीएसटी आईटीसी, इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म दिया गया हमको कि भाई आप अपना एक GSTR-1 अपलोड करेंगे जो आपके रिसिपिएंट के पोर्टल पर GSTR-2A बन के दिखेगा। GSTR-2A बन के जो दिखेगा उसमें से अगर आपको लगता है कि ये सच में आपकी क्रेडिट है, then you can accept that credit। अगर आपको लगता है कि ये आपकी क्रेडिट नहीं है, गलत रिफ्लेक्ट हो रही है GSTR-2A में, तो आप उसको डिक्लाइन भी कर सकते थे, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते थे। ऐसे ऑप्शंस वहां पर दिए गए थे when 1 जुलाई 2017 GST was implemented for the first time। अब ये जो GSTR-2A है, आपके एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के बाद सप्लायर के पोर्टल में GSTR-1A बन जाता अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन किया है अपने GSTR-2A में। तो सप्लायर देखता कि भाई ये मेरे रिसिपिएंट ने इतनी चीजें मॉडिफाई की है, मैंने जो GSTR-1 भरा था उसमें इतनी चीजें उसने चेंज की है, और वो जो चेंजेस आपने किए हैं उसको आइदर ही कैन एक्सेप्ट और ही कैन रिजेक्ट। नहीं, मैंने जो पहले फाइल किया था वही सही है, इसने जो चेंजेस सजेस्ट किए है वो मेरे ओपिनियन में गलत है, तो उसका GSTR-1 वैसा का वैसा रहेगा। अगर उसको ऐसा लगा कि भाई मेरे रिसिपिएंट ने जितने भी चेंजेस किए हैं वो सही है, देन ही विल एक्सेप्ट दोस चेंजेस, तो उसका GSTR-1 ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। इतना करने के बाद 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, 20 तारीख तक ऑटोमेटिकली GSTR-3 जनरेट होगा, जो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को आपके इनवॉइस और सामने वाले ने क्या एक्सेप्ट किया है उसको मैच करेगा। उसमें कहीं पर भी अगर मिसमैच है, मिसमैच का मतलब ये होता है कि आपने बोला था कि भाई, आपने मतलब सप्लायर ने, कि भाई मेरी जो क्रेडिट है वो 10,000 रुपए की है, और रिसिपिएंट बोल रहा है कि ये जो क्रेडिट है 10,000 की नहीं है, एक्चुअली 20,000 रुपए की है। So recipient has taken 20,000 rupees credit, supplier is showing only 10,000 rupees credit, then the excess 10,000 rupees credit will be automatically added in the output tax liability of the recipient in the next month। ये एक मैकेनिज्म थी जो प्रोवाइड की गई थी थ्रू सेक्शन 37, 38, 39 and specifically सेक्शन 42 and 43। 42 और 43 जो है वो मैचिंग मैकेनिज्म की सेक्शंस थी। इतना बैकग्राउंड देने के बाद हुआ ऐसा कि पोर्टल ने ठीक से काम नहीं किया, और बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो हमारा GSTR-1 है वो 1A कभी नहीं बन पाया, GSTR-3 हमने कभी नहीं देखा, तो सेक्शन 42 का जो मैचिंग है वो कभी हुआ नहीं। तो 42 का मैचिंग नहीं हुआ तो इसके लिए एक मिड गैप अरेंजमेंट डिपार्टमेंट लेके आए, जिसको हम लोग बोलते हैं GSTR-3B। अब 3B को हम लोग समरी रिटर्न बोले या समरी स्टेटमेंट बोले, इसके बारे में डिबेट है, लेकिन हम लोग उस डिबेट में नहीं जाते हैं। ऐसा समझते हैं कि भाई वो रिटर्न ही है, मान लीजिए GSTR-3B इन रिप्लेसमेंट ऑफ GSTR-3, लेकिन जो ऑटो पॉपुलेटेड चीजें आनी थी वो नहीं आई, और हमको समरीली वहां पर आईटीसी दिखानी पड़ी कि भाई इतनी मेरी टोटल आईटीसी है इस टैक्स पीरियड की, विदाउट गिविंग एनी अदर फर्दर एक्सप्लेनेशन। मुझे समरी में सिर्फ इतना दिखाना है कि इतनी मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब ये जो मिड गैप अरेंजमेंट है, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि भाई जो ऑटोमेटिक मैचिंग होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसकी वजह से काफी फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के केसेस बढ़ गए, क्योंकि GSTR-3B में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू से कि भाई ये इसकी क्रेडिट है उसकी क्रेडिट, ऐसा कुछ भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी वहां पर। अब सवाल यहाँ पर ये आया कि मैंने कोई चीज परचेस की है, मेरे पास उस चीज के परचेस का इनवॉइस है, मेरे पास ये प्रूफ भी है कि ये गुड्स और सर्विसेज मैंने रिसीव किए हैं, मैंने अपने सारे रिटर्न्स भी फाइल किए। अब इस सिचुएशन में मेरे सप्लायर ने मेरे पास से जो भी टैक्स कलेक्ट किया है वो उसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया। So whether in that situation my input tax credit can be denied or not, क्या मेरी input tax credit को deny किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, that was the biggest question।
तो इसका कोर्ट के रूलिंग से आंसर देने से पहले हमको थोड़ा एक्ट समझना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो एलिजिबिलिटी है इट इज रूटेड थ्रू सेक्शन 16. आपकी जो सेक्शन 16 है वो एलिजिबिलिटी की बात करती है और जो एलिजिबिलिटी के लिए એક જ તમારું છે ને વિડિયો નથી દેખાતું તો કદાચ વિડિયો તમારું ઓફ થઈ ગયું છે. એક જ સેકન્ડ. એટલે સ્ક્રીન તો દેખાય છે, તમારી સ્ક્રીન દેખાય છે, વિડિયો એટલે તમારો ફેસ નથી દેખાતો. ફેસ નથી દેખાતો? યસ યસ ના હવે દેખાય છે. યસ દેખાય છે પણ મારું આ નહીં દેખાતું હોય મારા ખ્યાલથી પ્રેઝન્ટેશન. હા પ્રેઝન્ટેશન નથી દેખાતું. એને સ્ટોપ શેરિંગ કરું અને ફરી એકવાર કરી જોઉં. હા કરો કરો વાંધો નહીં. હવે દેખાતું નથી સ્ક્રીન. યસ ચિંતનભાઈ હવે મારો વિડિયો Yes, દેખાય છે નથી દેખાતો? તમારો તમારો તમે નથી I think દેખાતા એમ. બ્રિજેશભાઈ આઈ થિંક તમે છે ને ભાઈ વિડિયો શેરિંગ ઓફ હા બસ નાવ ઓકે. ના યુ આર પણ હું આ ઝૂમ માં જાઉં છું ત્યારે ઓન થાય છે, પછી હું પેલામાં પાવર પોઈન્ટ માં ઓન કરું છું મારા સ્ક્રીન માં તો જતું રહે છે. એક સેકન્ડ. બેઝિકલી ઇટ શુડન્ટ હેપન પણ હકીકત તો એવી જ થઈ રહી છે. સાચી વાત છે. ચાલશે નહીં મારા વિડિયો વગર? થાય તો સારું, ના થાય તો પછી આમાં કોઈ બીજો ઓપ્શન છે? ઇઝ ધેર એની અધર ઓપ્શન ઇન ઝૂમ? સ્ક્રીન શેરિંગ ને કોઈ અલગ રીતે કરવાનું તો થઈ જતું હોય છે. આમ આવું લગભગ નથી થતું. હા. જસ્ટ અ સેકન્ડ. એટલે ફિઝિકલ ના બદલે વર્ચ્યુઅલ ઓલું ફેસ ના દેખાય તો થોડું લોકોને આ બધું એક્સપ્રેશન નો ખ્યાલ ના આવે, કદાચ એવું થાય. એક કામ કરી શકીએ, હું પ્રેઝન્ટેશન તમારામાંથી કોઈને મેલ કરું જે શેર કરી શકે, પ્રેઝન્ટ કરી શકે એવું? રોમિલભાઈ કર દો ને, વાંધો નહીં. રોમિલભાઈ I enabled everybody to Hello. share the screen, so even you can also share. Hello. हाँ रोमिल, हाँ. screen sharing is available to everybody. So Brijesh Bhai ji is sending you the presentation and you share from your computer. Okay. Okay, Brijesh Bhai, please send it to Romil. ઓકે જસ્ટ અ સેકન્ડ. Romil Bhai, પણ WhatsApp email કરી દઉં? address WhatsApp પર મેલ હા, કરો. મેલ કરી દઉં? what જસ્ટ અ સેકન્ડ. એટલે મેલ એડ્રેસ જોઈશે ને પાછું. તો તમે રોમિલભાઈ નાખો આમાં ચેટમાં નાખો મેલ એડ્રેસ. હા. ગ્રુપમાં નાખી દો ને, ગ્રુપમાં નાખશો તો વાંધો નહીં, ચેટમાં નાખશો તો વાંધો નહીં. Mail ID. What we were talking is कि भाई अगर मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, then whether can I be punished for fault of the supplier? मैं recipient हूँ और मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, then whether I should be punished for his fault or not, that is the question. अब ये जो डिबेट है ये एक्चुअली आजकल की डिबेट नहीं है, ये दिल्ली वेट एक्ट से गुजरात वेट एक्ट में भी यही डिबेट थी, दिल्ली वेट एक्ट में भी यही डिबेट थी कि भाई मेरे पास से अगर टैक्स का पैसा कलेक्ट हुआ है और मेरे सप्लायर ने वो गवर्नमेंट के ट्रेजर में डिपॉजिट नहीं किया है, देन व्हाई शुड आई बी पनिश्ड? उसकी गलती की वजह से मुझे क्यों पनिशमेंट मिलनी चाहिए? यहाँ पर बिफोर वी गो इनटू सेक्शन 16 इतनी चीजें हैं कि भाई रिसिपिएंट की जो आर्ग्यूमेंट ये है कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, नंबर 1. डिपार्टमेंट की जो आर्ग्यूमेंट है, गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट कि भाई यहाँ पर दो पार्टी नहीं हो आप, सप्लायर और रिसिपिएंट, 3 पार्टी है, सप्लायर, रिसिपिएंट और गवर्नमेंट. जब तक गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा ही नहीं मिल रहा तब तक गवर्नमेंट आपको क्रेडिट कैसे दे सकती है? गवर्नमेंट के पास पैसा अगर पहुंचा ही नहीं है तो उसकी क्रेडिट हम आपको कैसे दे सकते हैं? दैट वाज द क्वेश्चन. अब इसका आंसर अगर हम लोग सेक्शन 16 में देखें तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो है वो बात करती है किस कंडीशन से आपको जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, एलिजिबिलिटी ऑफ द आईटीसी. वहां पर 4 कंडीशन दी गई है. नंबर 1,
you must have the invoice available with you, invoice or other specified document. तो एक तो मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए. नंबर 2, गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, मतलब कि मुझे वो गुड्स या सर्विसेज मिले हुए होने चाहिए. नंबर 3, टैक्स मस्ट हैव बीन पेड टू गवर्नमेंट आइदर थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और थ्रू कैश लेजर. ये तीसरी कंडीशन है 16(2)(c). एंड नंबर 4, आई मस्ट हैव फाइल्ड द जीएसटी रिटर्न्स. मैंने जीएसटी रिटर्न जो है अंडर सेक्शन 39 वो रिटर्न फाइल किया हुआ होना चाहिए. अभी अगर हम लोग 16(2)(d) ये जो फोर्थ कंडीशन है उसकी बात करें तो ये रिटर्न का मतलब होता है जीएसटीआर 3B. तो जो 4 कंडीशन है कि मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए, मुझे गुड्स या सर्विसेज मिलने चाहिए, तीसरी कंडीशन की भाई टैक्स गवर्नमेंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए, और नंबर 4 रिटर्न मैंने फाइल किए हैं. इसमें जो तीसरी कंडीशन है वही यहाँ पर क्रिटिकल है. जो तीसरी कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट मस्ट हैव रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ टैक्स. जब तक गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं मिलता है तब तक गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स रेट नहीं दे सकती. ऐसी कंडीशन जो है वो कंडीशन है सेक्शन 16(2)(c) में. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे सप्लायर ने मेरे पास से टैक्स कलेक्ट किया है, मैंने सारे रिटर्न भरे हैं, मुझे गुड्स और सर्विसेज मिले हैं, मेरे पास इनवॉइस है, सब कुछ है, लेकिन उसने गवर्नमेंट को पैसा पे नहीं किया, तो उसकी पनिशमेंट मुझे क्यों मिलेगी? तो उसका आंसर यहाँ पर है 16(2)(c) में कि आपको पनिशमेंट इसलिए मिलेगी क्योंकि लॉ में ही ऐसी कंडीशन दी गई है कि भाई जब तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आता है तब तक गवर्नमेंट आपको उस चीज की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे सकती. अब इसमें से बचने के लिए what we can do in the court is we need to challenge the constitutional bias of the section 16(2)(c. ये जो सेक्शन है उसी को चैलेंज करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो सेक्शन है वो मेरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है. तो इस सेक्शन को अगर कोई कोर्ट, हाई कोर्ट या तो फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्राइक डाउन करती है 16(2)(c को, ओनली देन वी कैन से दैट कि भाई ये जो मेरी क्रेडिट है वो मुझे मिलेगी अगर मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है फिर भी. नाउ ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है कि भाई 16(2)(c को स्ट्राइक डाउन किया जाए किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी भी कोर्ट के थ्रू? So as per my opinion there is a high possibility कि फ्यूचर में कोई हाई कोर्ट या तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट विल से दैट दिस इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका जो मेरा जो ओपिनियन यहाँ पर बन रहा है कि क्यों ऐसा कोर्ट बोल सकती है, उसके थोड़े बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाए जीएसटी से पहले, तो देयर वाज अ दिल्ली वैट एक्ट. दिल्ली वैट एक्ट में ऐसी ही एक सेक्शन थी, सेक्शन का नंबर था 19(2)(g और 19(2)(f. ऐसी सेक्शंस थी जो आपको ऐसा बोल रही थी दिल्ली वैट एक्ट में कि भाई अगर डीलर ने, मतलब कि परचेजिंग डीलर ने अगर क्रेडिट लेनी है उसको, तो जो सेलिंग डीलर ने अगर टैक्स का पेमेंट किया है ओनली देन ही कैन टेक द क्रेडिट. यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, और ये जो केस है वो केस है अराइज इंडिया का केस है. इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो सेक्शन है इट सफर्स फ्रॉम सम फंडामेंटल फ्लॉज. 1% की गलती की सजा किसी दूसरे पर्सन को हम लोग नहीं दे सकते. ये क्लियरली दिख रहा है कि ये सेक्शन 14 के, अपने आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में जा रही है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला. और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन का यूज किया यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं. What is doctrine of reading down? Doctrine of reading down कोर्ट तब यूज करता है जब उनको लगता है. अच्छा, आई थिंक द स्क्रीन शेयरिंग स्टार्टेड. Just a second. Yes. चिंतन भाई, जस्ट एक मिनट में. हाँ जी, अच्छा.
વાંધો નહીં, તમે લેક્ચર ચાલુ રાખો ને બ્રિજેશભાઈ. ઓકે Meanwhile, ઓકે ડન યસ યસ આઈ થિંક કે થોડી ઘણી સ્ક્રીન તો દેખાય છે બધાને આમાં. Yes, okay. So what I was saying is कि कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन को तब यूज करता है. अच्छा मेरा अभी तो मेरा फेस दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when court is using the doctrine of reading down, ये ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन है, ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है जिसको कोर्ट तब यूज करती है जब कोर्ट इज कन्विंस्ड कि भाई ये जो प्रोविजन है जो पार्लियामेंट ने या किसी भी असेंबली ने बनाई है इज हैविंग सम फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज. इसमें फंडामेंटल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल के फ्लॉज है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन में एक रूम है जहां पर कुछ चीजों को अलग तरीके से अगर हम थोड़ा इंटरप्रिट करें तो हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो सेक्शन है वो इनवैलिड है ऐसा बोलने से हम लोग बच सकते हैं. मतलब कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है जिसको चैलेंज किया जाता है जब भी कोर्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सेव करने के लिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन का कई बार कोर्ट यूज करती है. तो ये जो अराइज इंडिया का दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, कई बार अक्सर लोग बोलते हैं कि अराइज इंडिया इज अ सुप्रीम कोर्ट केस. ये सुप्रीम कोर्ट केस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन यूज किया गया है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने यूज किया था, और इस जजमेंट के सामने पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में बाय द डिपार्टमेंट. दिल्ली रेवेन्यू अथॉरिटी ने इसके सामने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया. इसलिए हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अराइज इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का केस है, लेकिन रेशियो जो लेट डाउन हुआ है वहां पर वो दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू आया है. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई यस, यहाँ पर जो डीलर वर्ड है उसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूं कि वही डीलर जो बोनाफाइड नहीं है, मतलब कि या तो जिनका कॉल्यूजन है सप्लायर के साथ कि फ्रॉडुलेंट आईटीसी को ट्रांसफर करना, या तो जिनको पता था कि ये मेरा सप्लायर जो है टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा, ऐसी अगर कोई चीज थी और ऐसे अगर डीलर है, दोनों के बीच में ऐसा कोई कॉल्यूजन हुआ है जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई फ्रॉड है, तो उस सिचुएशन में वो 19(2)G नंबर की जो सेक्शन थी दिल्ली वेट एक्ट की वो एप्लीकेबल होगी. That means the word dealer used there will exclude the bona fide dealer. मतलब कि ऐसा पर्सन जिसने बोनाफाइडली कोई गुड्स परचेस किए हैं, जिसने टैक्स का पेमेंट अपने सप्लायर को किया है, जिसने गुड्स जिसको मिले हैं, जिसके पास इनवॉइसेस है, सारी चीजें उसके पास है, तो ऐसे बोनाफाइड डीलर को वो 19(2)G नंबर की सेक्शन में डीलर की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा. डीलर्स डेफिनेशन विल बी डीम्ड टू एक्सक्लूड बोनाफाइड डीलर. दिस इज व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट सेड. ऐसा इंटरप्रिटेशन करने की वजह से बेनिफिट क्या मिल सकता है? बेनिफिट ये मिल सकता है कि कोर्ट बच सकती है ऐसा बोलने से कि भाई ये जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है. उस प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सेव किया जा सकता है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन का यूज करके, ये जो डॉक्ट्रिन है उसका यूज करके अराइज इंडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई जहां पर बोनाफाइड परचेसेस हुए हैं वहां पर आप आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते रिसिपिएंट को. अब इस केस का इतना डिस्कशन हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि सेम रेशियो कैन आल्सो बी अप्लाइड इन द जीएसटी रिजिम. जीएसटी रिजिम में भी काफी हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन फाइल हुई है विच इज चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वायर्स ऑफ सेक्शन 16(2)C. 16(2)C जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही उसको हम लोग वैलिड नहीं मान सकते, ऐसी रिट पिटीशन फाइल हुई है. अब यहाँ पर कोर्ट के पास दो ऑप्शन रहेंगे अगर कोर्ट कन्विंस होती है इस चीज के साथ. तो पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने अराइज इंडिया वाले केस में, चिंतन भाई ने पाछड़ लई जाओ તમે આ 17 વાળું છે ને, आई थिंक કે સેકન્ડ કે થર્ડ નંબરની સ્લાઇડ હજી આગળ. यस बस डन. ओके थैंक यू. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी हाई कोर्ट स्पेसिफिकली वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसी काफी रिट पिटीशंस फाइल हुई है जिसमें 16(2)C को चैलेंज किया गया है.
तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि कोर्ट कैन यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन टू सेव दिस सेक्शन 16(2)(c) और वहां पर बोला जाए कि भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन वाली जो बात की है 16(2) में, दैट विल एक्सक्लूड बोनाफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। बोनाफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को हम लोग इसमें से एक्सक्लूड करते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर कोर्ट करती है थ्रू यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन, तो 16(2)(c) भी बच जाए। और हमको जो चाहिए कि भाई बोनाफाइड जो पर्सन है जिसने गुड फेथ में गुड्स या सर्विसेज परचेज की है, जिसने सप्लायर को टैक्स का पेमेंट भी किया है, उसको आईटीसी डिनाई भी ना हो, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर कोर्ट को लगता है कि रीडिंग डाउन का यूज यहाँ पर नहीं हो सकता, तो उस सिचुएशन में कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन 16(2)(c). अगर 16(2)(c) स्ट्राइक डाउन होती है तो उस सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर रिसिपिएंट कैन नॉट बी पनिश्ड। अच्छा, आज की तारीख में जब आज हम लोग 21 जुलाई को बैठ के इस चीज की बात कर रहे हैं, अभी क्या पोजीशन है? अभी पोजीशन ये है कि कोई इंटरिम ऑर्डर भी इसके बारे में पास नहीं किया गया है। है और जब तक गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं होता है तब तक आपको आईटीसी नहीं मिल सकती। मीनवाइल कुछ हाईकोर्ट्स के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं इसी सेक्शन के ऊपर जो हमें थोड़े बहुत यूजफुल हो सकते हैं। एक तो एक इंटरिम जजमेंट है, इंटरिम रिलीफ दी गई है इन द केस ऑफ भारत एल्यूमिनियम कंपनी। अच्छा, यहाँ पर जितने भी जजमेंट्स मैंने लिस्ट डाउन किए वो उसमें से ज्यादातर 1-2 जजमेंट्स को छोड़ के सारे के सारे जजमेंट मैंने ऐसे ही सिलेक्ट किए हैं जो कि टैक्स पेयर के लिए फेवरेबल है, जिसका आप कहीं ना कहीं अपने सबमिशन में एडजुडिकेशन के टाइम पे, अपील के टाइम पे यूज कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसे ही सारे जजमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में एक इंटरिम रिलीफ दी है टैक्स पेयर को, लेकिन उसने जो रेशियो लिया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, वो लिया है एक इंटरेस्टिंग केस जो है डीवाई बिथल का, मद्रास हाईकोर्ट का, वहां से। तो इसके बाद की जो स्लाइड है वहां पर शायद मैंने वो डीवाई बिथल वाला केस लिया है, अगर आप उसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जा सके। डीवाई बिथल के केस में मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली ऐसी बात की। नॉर्मली कैसा होता था पहले, और आज भी शायद यही हो रहा है, मेरे पास भी काफी ऐसे केसेस है जहां पर अपील्स हम लोगों ने फाइल किए जिसमें यही एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि सप्लायर जो है वो बोलता है कि भाई मैंने तो ऐसा किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। उसके वहां पर सर्च होता है या कुछ भी होता है, कोई भी प्रोसीडिंग होती है, ये सेइंग कि भाई मैंने ऐसे कोई गुड्स बेचे नहीं है, या तो किसी और चीज की वजह से डिपार्टमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि ये फेक ट्रांजैक्शन है, ये सिर्फ बिलिंग हुआ है, सच में गुड्स और सर्विसेज नहीं दिए गए हैं, डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस इस चीजों की वजह से हुआ है, ऐसा डिपार्टमेंट का ओपिनियन बनता है। एंड व्हाट डिपार्टमेंट डज, डिपार्टमेंट डायरेक्टली इश्यूज नोटिस अंडर सेक्शन 74 टू द रिसिपिएंट कि भाई आपकी ये जो क्रेडिट है इसको हम लोग क्यों डिनाई ना करें अंडर सेक्शन 16(2)(c). और जैसे ही सप्लायर ने बोला कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है वो मैंने नहीं किया है, या तो फिर ये गुड्स मैंने नहीं बेचे हैं, और कई केस में तो बिना सप्लायर के बोले ही डिपार्टमेंट को लगा है कि भाई ये गलत ट्रांजैक्शन है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, तो डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिसिपिएंट को नोटिस इश्यू करता है। अब डिपार्टमेंट जब डायरेक्टली रिसिपिएंट को नोटिस इश्यू करता है उस सिचुएशन में, ये जो डीवाई बिथल वाला केस है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। डीवाई बिथल वाले केस में मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि भाई आप रिसिपिएंट के पास जाओ, उससे पहले आपको सप्लायर के पास जाना पड़ेगा कंपल्सरी। इस सिचुएशन में ऐसा हुआ था इस केस में, डीवाई बिथल वाले केस में, कि सेलर का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने नहीं किया, दूसरा सेलर के पास से, या तो हम लोग जिसको बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में सप्लायर, सप्लायर के पास से रिकवरी प्रोसीडिंग भी उन्होंने इनिशिएट नहीं किया। बिना एग्जामिनेशन ऑफ द सप्लायर और बिना
recovery proceeding initiation on the supplier, directly they came to the recipient. So here in the DY Bethel case, the Madras High Court observed, और Madras High Court ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया कि भाई गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला है, वो बात सच है, या तो सप्लायर को पैसा देना पड़ेगा या रिसिपिएंट को पैसा देना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप रिसिपिएंट के पास जाओ, उससे पहले आपको सप्लायर के पास कंपल्सरीली जाना पड़ेगा। यू मस्ट इनिशिएट द रिकवरी प्रोसीडिंग फर्स्ट अगेंस्ट द सप्लायर। व्हेन यू फेल देन only then come to the recipient. You should not directly come to recipient. तो ये DY Bethel वाला जो केस है बहुत ही हेल्पफुल। और इसी के ऊपर से एक ये भारत एल्यूमिनियम वाला जो केस है जो छत्तीसगढ़ का है, इसके पहले की स्लाइड में जो है, वहां पर इंटरिम रिलीफ, इस जजमेंट को हम लोग जजमेंट नहीं बोल सकते भारत एल्यूमिनियम को, क्योंकि इंटरिम रिलीफ है। लेकिन फिर भी वहां पर कोर्ट ने बोला है कि भाई पहले आप जाओ सप्लायर के पास, और एक्सेप्शनल सिचुएशन में वर्ड्स यूज किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम द रिसिपिएंट ओनली इन द एक्सेप्शनल सिचुएशन। सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप रिसिपिएंट के पास से रिकवरी कर सकते हैं। तो ये दो केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है सेक्शन 16 के बारे में। दूसरा एक फेडरेशन ऑफ, एक नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं हम लोग। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में जो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल स्केल बैटरी एसोसिएशन ने जो एक पिटीशन फाइल की है, जहां पर 16(2)(c, रूल नंबर 36(4) और रूल नंबर 86(a)(1)(b), इतने रूल्स के वायर्स को चैलेंज किया गया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है कि भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायर्स जो है 16(2)(c के, 36(4) के और 86(a) के, इसको काफी और भी पिटिशंस में चैलेंज किया गया है। तो इन सारी पिटिशंस को दिल्ली हाई कोर्ट साथ में कंसीडर करेगी। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ये जो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल स्केल बैटरी वाला जो केस यहाँ पर लिया गया है, इसमें कोई जजमेंट नहीं है, ना कोई इंटरिम रिलीफ है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है, हमको ये ध्यान में रहे। एक और केस भी है भारतीय टेलीमीडिया का, उसमें काफी टाइम पहले 16(2)(c) को चैलेंज किया गया था, उसमें भी कोई फाइनल ऑर्डर अभी तक मिला नहीं है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का ही केस है। एज फार एज रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 इज कंसर्न, एज पर माय ओपिनियन इज वेरी क्लियर ऑन दैट। रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 इज डेफिनेटली अल्ट्रा वायर्स टू सेक्शन 16। 36(4) हमको ऐसा बोल रहा है कि आप प्रोविजनल बेस पे जितने अमाउंट के इनवॉइसेस आपके पोर्टल पे दिख रहे हैं, उसके मैक्सिमम 5% एक्स्ट्रा क्रेडिट आप ले सकते हैं। पहले वो 20% था, फिर वो 10% किया गया, अभी उसको 5% किया गया है। सो 36(4) इज डेफिनेटली लायबल टू बी स्ट्रक डाउन। स्टिल आई हैव डाउट अबाउट सेक्शन 16(2)(c। रूल नंबर 86 कैपिटल ए को भी स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। अगर आप मेरा ही ओपिनियन पूछो 16(2)(c के बारे में, तो अराइज इंडिया इज अ होप कि ऐसा जो रेशियो है अराइज इंडिया का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस किया था, दैट मींस लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, वो रेशियो लेके 16(2)(c को स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। लेकिन 36(4) डेफिनेटली 16(2)(c के बारे में, 86(a) के बारे में हम लोग डाउटफुल हो सकता है, but I am not at all doubtful about the striking down of rule number 36 sub rule number 4. अच्छा, as far as the chartered accountant friends are concerned कि भी हमको करना क्या है, हम लोग इसके क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ले या ना ले, क्या करें? तो एक ऑप्शन एक ऐसा बनता है कि क्रेडिट लेने के बाद आप इसको रिवर्स कर दो क्रेडिट को, क्योंकि रिवर्स की गई क्रेडिट को वापस लेने के बारे में कोई टाइम लिमिट नहीं है। दैट मींस 16(4) जो है वो टाइम लिमिट वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। सो कोर्ट में से अगर फेवरेबल रूलिंग फ्यूचर में आता है तो दैट क्रेडिट विल बी अवेलेबल, वो क्रेडिट आपके लिए अवेलेबल हो सकती है इन दैट सिचुएशन। सो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। अदरवाइज वी ऑल नीड टू सिलेक्ट आवर कोर्स ऑफ एक्शन कि हम लोग क्या करें, कैसे इंटरप्रेट करें 16(2)(c को। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट दिस सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो शुड वी गो अहेड कि इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? लेट्स डू वन थिंग कि भी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लास्ट में रखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं।
Will it be fine with the permission of the chair? Chintan bhai? Yes, fine. Fine, okay. So let's go ahead. नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 17. सेक्शन 17, अच्छा इसमें नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं हम लोग. ओके. ARS स्टील्स एंड एलॉय इंटरनेशनल प्राइवेट, ये रिसेंट जजमेंट है. आई थिंक जून एंड में ही ये जजमेंट आया है मद्रास हाईकोर्ट का. मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं. ये जो जजमेंट है 17(5) जो सेक्शन है हमारी, वो है ब्लॉक्ड क्रेडिट की सेक्शन. ब्लॉक्ड क्रेडिट का लॉजिक ऐसा है कि भले ही सेक्शन 16(1), 16(2) में कुछ भी बोला गया हो, यू आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट, आप हर तरीके से क्रेडिट के लिए एलिजिबल है, फिर भी the law does not want to give all the credits to you. Some of the credits they want to block. कुछ क्रेडिट ऐसी है कि जिसको वो ब्लॉक करना चाहते हैं, कुछ क्रेडिट ऐसी है कि जो वो नहीं देना चाहते आपको. तो ऐसी जो क्रेडिट्स हैं, वो जो लिस्ट दिया गया है वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री विजडम. कुछ चीजें पार्लियामेंट के विजडम के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कोर्ट्स कई बार इंटरप्रेट करती है, ऐसा कई बार कोर्ट समझती है. पार्लियामेंट के विजडम के ऊपर छोड़ देना चाहिए मतलब ये है कि भाई ये जो क्रेडिट है वो आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. उनके पास उनका अपना लॉजिक होगा, उनके पास उनका अपना विजडम होगा, जिसकी वजह से ऐसी सेक्शन उन्होंने ड्राफ्ट की है. एंड इट शुड नॉट बी कॉल्ड अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा एक कॉन्सेप्ट है. अब यहां पर डिस्कशन के लिए ये चीज है कि 17(5)(h) जो है वो हमको ऐसा बोलता है कि कोई चीज अगर मान लीजिए कि लॉस हो गई है, या तो फिर इट हैज बीन स्टोलन और इट हैज बीन गिवन एज अ फ्री गिफ्ट और सैंपल, इन दैट सिचुएशन यू आर रिक्वायर्ड टू रिवर्स द क्रेडिट. यहां पर डिपार्टमेंट ने एक इसी केस में, ARS स्टील के केस में, ऐसा एक स्टैंड लिया कि भाई आपने इनपुट लेट से 100 किलोग्राम का किया है, लेकिन आपका आउटपुट जो है वो 90 किलोग्राम का है. दैट मीन्स द इनपुट इज लॉस्ट. आपका पूरा इनपुट यूज नहीं हुआ है फिनिश गुड्स में. सो वी विल एक्सरसाइज 17(5)(h) और ये जो 10 किलोग्राम का आपका जो लॉस हो रहा है, 10 किलोग्राम का जो आपका इनपुट जो है वो आउटपुट में नहीं जा रहा है, उसकी क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 17(5)(h). 17(5)(h) में आपको उसकी क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट द कंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट वाज. तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला, पहले की काफी केसेस हैं जिसका रेशियो यहाँ पर लिया गया है कि भाई इफ द लॉस इज इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, अगर जो लॉस है वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में इनहेरेंट है, तो उस सिचुएशन में आप नहीं बोल सकते कि इनपुट इज नॉट कंटेन्ड इन आउटपुट, इनपुट इज नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 100 किलोग्राम का इनपुट है और 100 किलोग्राम का एग्जैक्ट पूरा आउटपुट आएगा. जो भी इनपुट है वो पूरा का पूरा आउटपुट में चला जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. दिस सिचुएशन इज नॉट कवर्ड अंडर 17(5)(h). दिस इज व्हाट मद्रास हाईकोर्ट सेड कि इफ the loss is inherent in the manufacturing process, then you cannot exercise the provision of 17(5)(h) and you cannot say that the input tax credit is required to be reversed. उसको रिवर्स करना है, ऐसा आप वहां पर नहीं बोल सकते. So is it fine about this 17(5)(h)? ARS still. अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं.
अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रही है कि बीच में कोई एक, मुझे जो स्क्रीन दिख रहा है वहां पर एक ब्लैक बॉक्स है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। करो બ્રિજેશ ભાઈ, એક ટેકનિકલ એરર આવી રહી છે એટલે कहीं कहीं बातों नहीं, चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और जजमेंट है रामकृष्ण महालिंगम, ये भी बहुत ही बेनिफिशियल जजमेंट है। और ऐसा इनजस्टिस जो यहाँ पर किया गया है इस केस में, मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू जो इनजस्टिस था, जिसको इट हैज बीन मेड गुड बाय द कोर्ट, वी कैन से बाय द मद्रास हाई कोर्ट, ऐसा काफी जगह पर ऑब्जर्व किया गया है। होता ऐसा है कि मान लीजिए मैंने कोई रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, एंड बिकॉज ऑफ नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 29 माय रजिस्ट्रेशन गेट्स कैंसल्ड, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अब मेरा रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल हुआ तो मेरे पास ऑप्शन रहता है कि विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन मैं रिवोकेशन के लिए अंडर सेक्शन 30 अप्लाई कर सकता हूं। 30 + 30 + 30 इस तरीके से एक्सटेंशन है। 30 दिन नॉर्मल, उसके बाद में ज्वाइंट कमिश्नर कैन एक्सटेंड अप टू अनदर 30 days एंड कमिश्नर कैन फर्दर एक्सटेंड अप टू 30 days, दैट मींस टोटल 90 days तक आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते टाइम पे क्या करना है और क्या क्या चीजें देखनी है, वो रूल नंबर 23 में दिया गया। अब रूल नंबर 23 इतना बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है, उसने रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं और आपने उसका नंबर कैंसिल कर दिया, अब वो सारे रिटर्न फाइल कर रहा है, सारा इंटरेस्ट उसने पे कर दिया, सारा टैक्स का पेमेंट उसने कर दिया, जो लेट फीस थी उसका पेमेंट उसने कर दिया, देन यू आर रिक्वायर्ड टू रिवोक द कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल किया है अंडर सेक्शन 29 उसको रिवोक करना है, ऐसा रूल नंबर 23 में बोला गया है। ये जो रामकृष्ण महालिंगम का जो केस है, वहां पर भी सेम सिचुएशन हुई। इस पर्सन का नंबर कैंसिल हुआ, उसने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया। द डिपार्टमेंटल ऑफिसर रिजेक्टेड द रिवोकेशन एप्लीकेशन सेइंग दैट कि आपने जो आईटीसी ली है वो आईटीसी गलत ली है। आपकी जो आईटीसी आपने क्लेम की है, दैट आईटीसी इज नॉट करेक्ट। लीगल प्रोविजन जो सेक्शन 16 है या 17 है, किसी का वायोलेशन है और इतनी आईटीसी आपको नहीं मिल सकती, ऐसा डिपार्टमेंट ने, मतलब जो ऑफिसर है जिसके पास ये रिवोकेशन कोई एप्लीकेशन गई, उसने ऐसा बोला और एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। कोर्ट ने रेशियो ऐसा इंटरेस्टिंग ले डाउन किया है यहाँ पर कि भाई अगर कोई पर्सन रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन करता है अंडर सेक्शन 30, then as per rule number 23 you have only power to verify कि उसने सारे रिटर्न भर दिए, टैक्स का पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट और लेट फीस का पेमेंट कर दिया या नहीं। उसके सेक्शन 30 के बहाने आप सेक्शन 73 और 74 यूज नहीं कर सकते। मतलब कि आपको असेसमेंट नहीं करना है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। वो जो अपनी लायबिलिटी बोल रहा है वो उसने पे कर दी, रिटर्न फाइल कर दिया, उसने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, लेट फीस का पेमेंट कर दिया, दैट मींस यू आर बाउंड टू रिवोक द कैंसलेशन। यू हैव नो पावर टू वेरीफाई वेदर द आईटीसी हैज बीन करेक्टली टेकन और नॉट। आप उसका रजिस्ट्रेशन एक बार रिवोक कर दीजिए, उसके बाद में आपको जो भी असेसमेंट करना है वो कर सकते हैं। यू कैन नॉट से कि भाई आपका आईटीसी गलत है, इसकी वजह से आपका रिवोकेशन ही नहीं हो सकता। तो आप असेसमेंट वाली जो प्रोसेस है, आप जो डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स वाली जो प्रोसेस है सेक्शन 73 की, सेक्शन 74 की, उसको सेक्शन 30 के रूट से नहीं ले जा सकते। सेक्शन 30 रीड विथ रूल नंबर 23 डू नॉट गिव यू पावर ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। सो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय मद्रास हाई कोर्ट। तो अगर रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन का केस आपके पास आता है और आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफिसर आईटीसी की और इन सारी चीजों की बात करता है अगर, तो आप ये जजमेंट उसको दिखा सकते हैं। दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में
ये भी वही कंटिन्यूएशन में है सेक्शन 30 जो हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं हम लोग। ब्रिजेश पे क्लिक करो, થઈ જશે તમારથી। નહીં થયું? નથી થતું। થયું? ના જી સાહેબ। હવે આ તમે કર્યું કે મેં કર્યું? મેં કર્યું મેં। ઓકે, અહીંયા રિમોટ કંટ્રોલ ઇઝ પોઝડ લખ્યું છે। યોર રિમોટ કંટ્રોલ ઇઝ પોઝડ બાય ગાંધીનગર સીપી સ્ટડી સર્કલ। ટેપ ધ આઇકોન ટુ રિઝ્યુમ। એકવાર ટેપ કરીને ફરી ટ્રાય કરી જોઈએ। કરી જોવું પડે। હવે શેર કરો તો ભાઈ। એક જ સેકન્ડ। યસ સર, બરાબર છે હવે। ચાવડા સાહેબ બરાબર છે? મને તો દેખાય છે મારી સ્ક્રીન। એ બી દેખાય છે, પણ અગેન સાહેબ ચેરો જતો રહ્યો। એ જ વસ્તુ થાય છે। હા, એ વસ્તુ છે। રોમેન સાહેબ થાય છે ભાઈ, મારાથી બી જતું રહ્યું અહીંયાથી। મારાથી પણ નથી થતું અહીંયાથી। તમારે કેમ આનું પેલો પેજ દેખાડવું છે? બંધ કરતા હું સ્ટોપ કરી દઉં શેરિંગ। એવું કરશો ચાવડા સાહેબ કે પીપીટી પછી શેર કરી દઈશું। હા, ઓકે, ડન। હા, એવું કરીએ। ઓકે, પીપીટી ની બહુ અમે રિક્વાયરમેન્ટ નથી। ઠીક છે, એક કરીને કેસ લેતા। સાહેબ તમે પીપીટી ની રિક્વાયરમેન્ટ હોત તો સાહેબ ફોટા માટે આટલું મથત નહીં બધા। PPT basically normally I don't use, I am not used to this PPT things also, પણ હવે શું છે કે બધાને PPT ની રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે એટલે PPT બનાવવી પડે છે, એના જેવું છે। બાકી I will share the PPT। તમે એને ગ્રુપમાં પણ અત્યારે નાખ્યું હોય તો નાખી શકો છો સર। હેલો, To whom you shared it? રોમિલભાઈને મેલ કર્યો છે મેં। રોમિલ ભાઈ ગ્રુપમાં નાખી દો ને ભાઈ, તો everybody can open and હા। can see during the seminar also। ઓકે, હા, डन ने? तो शुड आई गो अहेड? ડન Yes, ડન। ओके everyone भाई। ओके। तो दो तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की यहाँ पर। सेक्शन 16 की बात की, 17 की बात की, then after this section 30 revocation। One more problem is being faced by many of the chartered accountants regarding the blocking of the electronic credit ledger। ऐसा होता है कि कई बार ये जो रूल नंबर 86 कैपिटल ए है, जहां पर जीएसटी ऑफिसर को पावर दिए गए हैं कि वो प्रोविजनली आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है उसको ब्लॉक कर सकता है। प्रोविजनली आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक हुआ, उसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट यूज दैट बैलेंस लाइंग इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अच्छा, ब्लॉक तो जो भी उन्होंने स्टैंड लिया है या जो भी उनके पास एविडेंस है वो बात अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये रूल कितना वैलिड है वो बात भी अलग है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऑब्जर्व ऐसा हम लोगों ने किया है कि भाई 1 साल होने के बावजूद भी ये जो क्रेडिट लेजर को ब्लॉक किया गया है वो वैसा का वैसा रहता है। मतलब कि 1 साल से ऊपर तक उसको ब्लॉक करके रखा जाता है थ्रू रूल नंबर 86 कैपिटल ए।
यहाँ पर इतने सारे जजमेंट्स मैंने इसी के ऊपर, काफी हमारे प्रेजेंटेशन में काफी सारे जजमेंट्स हैं इसी के ऊपर। रूल नंबर 86 कैपिटल ए सब रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 3 क्लियरली बोलता है कि ये जो ब्लॉकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है दैट कैन नॉट बी डन फॉर मोर देन 1 ईयर। जिस तारीख को आपने ब्लॉक किया उसके 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाना चाहिए। मेरे खुद के ध्यान में ऐसे इतने सारे केसेस आए हैं कि जहां पर डिपार्टमेंट इज नॉट वैकेटिंग दिस स्टे, कॉल इट अ स्टे और अटैचमेंट और व्हाटएवर यू से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करके ही रखा जाता है, जहां पर हम लोग उनको लेटर लिखते हैं कि भाई ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है ब्लॉक किया गया है, 1 साल हो गया, अभी तक इसको आपने इसके ऊपर से जो अटैचमेंट है वो हटाया नहीं है। सो इतने सारे केसेस हैं यहाँ पर, केसेस के साइटेशन प्रेजेंटेशन में है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बोला है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला है, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है, काफी सारी चीजों के जजमेंट्स वहां पर 86 कैपिटल ए में है। अच्छा, मैंने जो जजमेंट्स लिए हैं उसमें से जजमेंट्स मैंने अप्रैल में जून के ही लिए हैं ज्यादातर। most of the judgments I have taken are for the month of which are passed in the month of April, May, June. Absolutely recent judgments. अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट आया है अभी, F1 ऑटो कंपोनेंट्स। F1 ऑटो कंपोनेंट्स में भी अगेन मद्रास हाईकोर्ट है जो सेक्शन 50 के इंटरेस्ट की बात करता है। अच्छा, सेक्शन 50 के जो इंटरेस्ट में जो इश्यू है वो ऐसा है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, उसके बाद में सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 और उसके बाद में सेक्शन 50 सबसेक्शन 3, ये 3 सबसेक्शंस है जो इंटरेस्ट किस तरीके से लेवी होगा उसकी बात करते हैं। अब एक चीज तो हमको पता है कि इस सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021, जिसको नोटिफाई भी अभी कर दिया गया है। पहले ऐसा एक डिस्कशन था कि भाई मेरी टोटल आउटपुट लायबिलिटी जो टोटल आउटपुट लायबिलिटी है वो है 10 लाख रुपए और मेरे पास क्रेडिट पड़ी है 8 लाख रुपए की, तो इंटरेस्ट मुझे 10 लाख के ऊपर पे करना है या तो 2 लाख के ऊपर पे करना है, दैट वाज द क्वेश्चन। तो डिपार्टमेंट का स्टैंड ऐसा था कि आपको ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर पेमेंट करना है। फिर जीएसटी काउंसिल ने अपनी मीटिंग में बोला कि भाई नहीं, हमको तो नेट लायबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट लेना है। डिपार्टमेंट जीएसटी काउंसिल ने बोलने के बाद भी कोई नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने बोला कि भाई आप कब इसका नोटिफिकेशन इशू करने वाले हैं, कि आप नेट लायबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट लेंगे। तो नोटिफिकेशन भी इश्यू हुआ, वहां पर बोला गया कि भाई ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा, लेकिन पिछली जो डिमांड्स है उसके ऊपर भी हम लोग रिकवरी करने वाले नहीं है ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। उसके बाद में एक्ट में ही अमेंडमेंट किया गया, प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया और इस प्रोवाइजो में बोला गया कि इट विल बी ओनली ऑन द नेट लायबिलिटी पोर्शन। दिस इज व्हाट द प्रोवाइजो इंसर्टेड। उस प्रोवाइजो में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैच है, लेकिन उसका अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ये सारे जजमेंट्स रह जाएंगे। जजमेंट जिस चीज के बारे में उसकी बात करते हैं हम लोग। ये जो प्रोवाइजो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ग्रॉस लायबिलिटी या नेट लायबिलिटी के बारे में, वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में इंसर्ट किया गया है। अब इनपुट टैक्स राइट अगर मैंने गलत ले ली है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग केयरफुली, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर मैंने कोई आईटीसी गलत ले ली है और उससे मुझे रिवर्स करना है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग केयरफुली, तो क्या मुझे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत पड़ेगी? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो क्या मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट की बात की गई सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में, और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में ऐसा बोला गया है कि इंटरेस्ट एट द हायर रेट नॉट एक्सीडिंग 24% विल बी कलेक्टेड व्हेन the input tax credit is availed in violation of subsection 10 of section 42 or 43. Now please understand this section 42 and 43 is about the matching mechanism. जो हमारा GSTR 1 था, 2 था, 3 था, ये जो पहली ओरिजिनल मैकेनिज्म थी उसकी बात की गई है सेक्शन 42 में।
तो अगर सेक्शन 42 के सबसेक्शन 10 का वायोलेशन है तो ही ये इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 का। इस अगर सेक्शन को आप ध्यान से पढ़े तो यही चीज है उसमें। अगर मैचिंग ही ठीक से डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, अगर जीएसटीआर 1, 1A, 2, 2A और 3 वाला मैकेनिज्म जो प्रोवाइड किया गया है और जिसकी बात सेक्शन 42 में की गई है और 42 को आप ऑपरेट नहीं कर पाए, 42 हमने ठीक से देखा ही नहीं कभी क्योंकि मैकेनिज्म ही ऑपरेशनल नहीं हुआ, तो क्या उस नॉन ऑपरेटिव सेक्शन का कलर लेके मैं सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में ऐसा बोल सकता हूं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? सो नेचुरली दैट कैन नॉट बी डन। तो अभी का जो रेशियो है वो ऐसा इंटरेस्टिंग है कि भाई अगर मैं आईटीसी गलत ले ली है और उसको मैं अगर रिवर्स कर रहा हूं तो दैट सिचुएशन आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि इंटरेस्ट चार्जिंग का जो मैकेनिज्म है वो ही फेल हो रहा है वहां पर। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने का कोई लॉ में मैकेनिज्म ही नहीं है क्योंकि लॉ में आईटीसी के ऊपर, रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट की बात सिर्फ एक सेक्शन में की गई है। वो सेक्शन है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 जिसमें रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 का जो नॉन ऑपरेटिव है। तो अगर मेन सेक्शन आपकी नॉन ऑपरेटिव है तो इंटरेस्ट वाली सेक्शन ऑपरेटिव नहीं हो सकती। और यही चीज का डिस्कशन काफी बार पहले भी हुआ था और अभी रिसेंटली जजमेंट भी आ गया है F1 ऑटो कंपोनेंट्स का। आपको साइटेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी ये साइटेशन मैंने दिया है जहां पर क्लियरली ऐसा मेंशन किया गया है कि भाई सेक्शन 42 ही नहीं है जब, तब आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट लगाने का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। दिस इज व्हाट द थिंग इज। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर ग्रुप में प्रेजेंटेशन शेयर हो चुका है तो मैं स्लाइड नंबर आपको यहां से बताता हूं तो आप उस स्लाइड से आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड नंबर 12। अच्छा, एक रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो है वहां पर एक एग्जम्पशन दिया गया है। एग्जम्पशन में ऐसा है कि भाई जो भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है वो अपने मेंबर्स के पास से कोई मेंबरशिप फीस या आप जो भी उसको बोलो, कंट्रीब्यूशन बोलो, ये चीजें कलेक्ट करती है। और ये जो बॉडी है वो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है और वहां पर मेंबर पर मंथ अगर कंट्रीब्यूशन 7,500 रुपए से नहीं बढ़ता है तो उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक एग्जम्पशन है नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 में, जिसको नोटिफिकेशन नंबर 2 2018 से अमेंड किया गया। पहले 5,000 की लिमिट थी, उसको बढ़ा के कर दिया गया 7,500 रुपए। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह थी कि पर मेंबर पर मंथ 7,500 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन है तो कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि 7,500 की जगह पर ये फिगर 7,600 है तो क्या करेंगे? अगर 7,600 है तो क्या पूरे 7,600 के ऊपर जीएसटी लगेगा कि सिर्फ 100 रुपए के ऊपर लगेगा? तो इसके ऊपर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने बोला कि भाई ये जो एग्जम्पशन है वो कंडीशनल है। वहां पर ऐसा बोला गया है कि अगर 7,500 तक का कंट्रीब्यूशन है तो ही एग्जम्पशन मिलने वाला है। तो मतलब सीधा साधा ये है यहाँ पर कि अगर कंट्रीब्यूशन 7,500 से बढ़ा तो कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको कोई एग्जम्पशन मिलने वाला ही नहीं है। तो पूरे 7,600 के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक सर्कुलर भी डिपार्टमेंट ने इश्यू किया 2019 में, सर्कुलर नंबर है 109/28 2019। इस सर्कुलर में भी वही चीज बोली गई। सर्कुलर में ऐसा बोला गया कि भाई अगर 7,500 रुपए से आपका कंट्रीब्यूशन पर मंथ बढ़ रहा है, सो इन दैट सिचुएशन आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, पूरी अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अभी मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया है ग्रीनवुड ओनर्स एसोसिएशन के केस में, जहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है आपका 12 2017 अमेंडेड बाय 2 2018, वहां पर लिखा गया है अप टू 7,500 एंड देयर इज अ रेयरली एनी नीड टू डिफाइन द वर्ड अप टू। अप टू का मतलब होता है इतनी अमाउंट तक। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 7,600 रुपए है
तो उसमें सिर्फ 100 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूरा एग्जम्पशन चला जाएगा। सो वो दोनों चीजें, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने जो जजमेंट दिया वो और सर्कुलर, दोनों को क्रॉस कर दिया गया है थ्रू दिस जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। स्लाइड नंबर 12, ग्रीनवुड ओनर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 13। शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है उसके जैसे ही जजमेंट काफी और हाई कोर्ट्स ने भी दिए हैं, और पटना हाई कोर्ट ने खुद ने ऐसे काफी जजमेंट दिए। यहाँ पर एक दो चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि जब भी प्रोसीडिंग शुरू होती है अंडर सेक्शन 74, तो जो सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग ऐसी है कि भाई पहले आपको नोटिस दी जाती है, उसके बाद में ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद अंडर सेक्शन 79 रिकवरी प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट। ये इस तरीके की पूरी प्रोसीजर है। तो जब मेरा DRC 07 में ऑर्डर आता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स, तब क्या मैं उसके सामने अपील फाइल करूं या तो मैं हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करूं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी किसी स्टैट्यूट में अपील रेमेडी इज अवेलेबल, जब भी किसी स्टैट्यूट में अपील रेमेडी अवेलेबल होती है, तो उस सिचुएशन में यू कैन नॉट डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट। आपको जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में जाना चाहिए कि पहले अपील फाइल करो, उसके बाद में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के बाद जाओ सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाओ। इस तरीके से यू कैन गो, यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज द रूट ऑफ आर्टिकल 226 रिट पिटिशन। लेकिन अगर जो ऑर्डर पास किया गया है वो इट इज इन वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपके फंडामेंटल राइट्स का ही वायोलेशन है, तो उस सिचुएशन में द अपील कैन डायरेक्टली लाई टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। वहां पर आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के रूट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन गो टू हाई कोर्ट। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे पास इस सिचुएशन में डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाने का ऑप्शन है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 ऐसा बोला गया है कि बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, आप ऑर्डर पास करें उससे पहले, इफ द टैक्स पेयर हैज demanded opportunity of being heard or personal hearing, then the personal hearing must be given to him। तो आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी सेक्शन 74 की नोटिस आती है आपके पास, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 में अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग मांगना है आपको। ज्यादातर केसेस में इस अपॉर्चुनिटी की आपने डिमांड की है, ऐसी चीज डिपार्टमेंट पढ़ते ही नहीं है, डिपार्टमेंट पढ़ता ही नहीं इस चीज को, ऑफिसर्स पढ़ते ही नहीं है। And without giving the opportunity of personal hearing, please understand, this is not the opportunity of being heard. There's a difference. Section 75 subsection 4 is talking about opportunity of personal hearing. So उन्होंने आपको नोटिस दिया 74 का, that itself doesn't mean कि they have given you the opportunity of personal hearing. 74 itself is a show cause notice। 74 में आपको शो कॉज नोटिस दी जाती है कि आप 30 दिन के अंदर जवाब दो कि क्यों इतना टैक्स आपके पास से कलेक्ट ना किया जाए। उसके रिप्लाई में आपने लिखा कि ये रीजन है, एंड वी आल्सो रिक्वायर अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 4। और अगर आपको वो पर्सनल हियरिंग नहीं दी जाती है, अच्छा हम लोग स्लाइड नंबर 13 में, वी आर ऑन स्लाइड नंबर 13। यस, स्लाइड नंबर 13। और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग नहीं दी जाती है अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 4, दैट मींस द ऑर्डर इटसेल्फ इज लायबल टू बी कॉस्ट। क्योंकि सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 की जो रिक्वायरमेंट है, इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जीएसटी ऑफिसर की उसको पर्सनल हियरिंग देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो कोर्ट हैज हेल्ड, एक तो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, हमने देखा शंकर प्रसाद,
दूसरा उसके नीचे स्लाइड नंबर 14 में ये भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ये कि भाई सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल और एट द डिस्क्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी यही चीज बोली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक और केस में जीआरटी होटल्स एंड रिसोर्ट यही चीज बोली है, 75(4) इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। दूसरा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक और जजमेंट, ओशन स्पार्कल लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर, स्लाइड नंबर 17, ये भी यही चीज की बात करता है। मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट स्लाइड नंबर 18, ये भी यही चीज की बात करता है। इतने सारे जजमेंट इसी चीज के ऊपर क्यों है? और ये सारे के सारे रिसेंट जजमेंट है, अप्रैल में जून में इश्यू हुए सारे जजमेंट है। इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑपोजिट पर्सनल हियरिंग इज नॉट गिवन बाय डिपार्टमेंट, और ये जो रिक्वायरमेंट है ऑपोजिट पर्सनल हियरिंग की, ये कोई सर्क्यूलर के थ्रू नहीं आई है, कोई रूल के थ्रू नहीं आई है, कोई नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं आई है। दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट गिवन अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 4, so it has to be given, this opportunity must be given। तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त हैं, जहां पर भी सेक्शन 74 की आपको नोटिस आती है, सबसे पहली मेरी तरफ से एडवाइस है कि जो भी रिप्लाई करो उसमें एक लाइन डालो, एक एडिशनल लाइन डालो, सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 में वी वांट अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग। और जो ऑर्डर आता है आपका DRC 07 की समरी ऑर्डर आया आपका, और स्पीकिंग ऑर्डर आता है जो भी, उसमें अगर वो आपकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग की कोई बात ही नहीं की गई है, दैट मींस स्ट्रेट वे बिकॉज ऑफ सो मेनी जजमेंट्स गिवन बाय हाई कोर्ट द ऑर्डर विल बी लायबल टू बी कॉस्ट। आप अपनी फर्स्ट अपील में ही ये चीज बता सकते हैं कि सबसे पहली बात ही ये है कि ये जो 75(4) है वो फुलफिल नहीं हुआ है। बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे कि मैं सही हूं, मैंने ITC ठीक से ली है या नहीं ली है, मेरे सप्लायर मैंने टैक्स का पेमेंट किया है कि नहीं किया गया है, वो सारी चीजें मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन 75(4) का ही वायोलेशन है, विच इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई सर्कुलर नहीं है, इज अ रिक्वायरमेंट गिवन इन द लॉ। सो अगर इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया गया है, इन दैट सिचुएशन क्लियरली एट द फर्स्ट अपीलेट स्टेज ओनली वी कैन से दैट द ऑर्डर इज एबल टू बी कॉस्ट। स्लाइड नंबर 19 पे आ जाते हैं हम लोग। इस केस में ऐसा हुआ, अब इसको तो हम लोग डिपार्टमेंट की क्लियर गलती ही मान सकते हैं। इसमें ऐसा है कि भाई 73 में और 74 में टाइम लिमिट इश्यू की गई है शो कॉज नोटिस इश्यू करने की। इसमें ऐसा है कि 73 का अगर ऑर्डर आप दे रहे हैं, 73 ये है कि भाई फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सपरेशन ऑफ फैक्ट, इन सारी चीजों के केस नहीं है, नॉर्मल केस है। तो जिस तारीख को आप ऑर्डर पास कर रहे हैं उसके एटलीस्ट 3 महीने पहले शो कॉज नोटिस आपको इश्यू करनी पड़ेगी। और 74 में ऐसा है कि एटलीस्ट 6 महीने पहले आपको नोटिस इश्यू करनी पड़ेगी। अब यहां पर तो डिपार्टमेंट ने ऐसी गलती की है कि भाई नोटिस इश्यू नहीं की, डायरेक्टली ऑर्डर पास हो गया है 73(10) का। दूसरी चीज, पेनल्टी जब भी इंपोज होती है तो पेनल्टी हमेशा इंपोज होती है सेक्शन 122 से। 73 और 74 की पेनल्टी नहीं होती, वो सिर्फ रिड्यूस करती है पेनल्टी को, कि आप इतने दिन में पेमेंट कर दो तो पेनल्टी इतनी लगेगी, इतने दिन के बाद पेमेंट करो तो इतनी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी जो ऑपरेटिव होती है वो होती है सेक्शन 122 से। सो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश का जो ये पृथ्वी रेड्डी वाला जो केस है, उसमें ऐसा हुआ कि नोटिस जो 3 महीने और 6 महीने वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको वायोलेट हुआ, वो रिक्वायरमेंट वायोलेट हुई, और बिना नोटिस विद इन द टाइम लिमिट इश्यू हुए ही ऑर्डर पास हो गया। तो इन दैट सिचुएशन नेचुरली द ऑर्डर इज लायबल टू बी कॉस्ट। आगे चलते हैं। अच्छा, ये 74 का जो डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले दिनों में बहुत ही काम लगने वाला है हम सबको। जब भी असेसमेंट होगा, अभी असेसमेंट सेंट्रल में तो शुरू हो चुका है, स्टेट में इट इज अबाउट टू कमेंस। सेक्शन जो आपके ईयर 2017, 18, 19 के जो असेसमेंट्स है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो वहां पर अगर उनको कोई भी चीज ऐसी लगी कि जिसमें टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड,
so they will exercise the powers given under section 73 and 74. तो आपके ऊपर फिर 73 74 की नोटिस आएगी। तो 73 74 की नोटिस जब भी आती है तब हमको एक चीज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी कि भाई मैं 75(4) का यूज करूंगा। 75(4) इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जैसे ही असेसमेंट शुरू होंगे 73 और 74 की लाइन लगने वाली है। सो देयर यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। एक डेकोरियन प्रोविजन है जिसको हम लोग मानते हैं कि बहुत ही हार्श है, वो है सेक्शन 83 जो हमारी स्लाइड नंबर 20 पे है। हम लोग ऐसी कोशिश में करूंगा कि ये सारी चीजें मैं कंप्लीट करूं एट 6:45 और एटलीस्ट 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रहे हमारे पास। आपके कोई क्वेश्चन है तो आई शुड बी एबल टू आंसर। ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है इसमें राधा कृष्ण इंडस्ट्री का, आप सबको ये जजमेंट तो शायद पता होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है वो ऐसी चीज है कि कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन कि जब भी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है और जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसमें उसको ऐसा लगता है कि भाई द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू विल बी प्रिजुडिकली इफेक्टेड, देन ही कैन प्रोविजनली अटैच द असेट्स। असेट्स विल इंक्लूड एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट भी वो अटैच कर सकते हैं। तो वहां पर एक तो सेक्शन 83 और उसका जो रूल है, रूल नंबर 159, वो हमको समझना है कि उसने एक बार प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर दिया, उसके बाद में यू कैन फाइल ऑब्जेक्शन विद इन 7 डेज। और आपने जब विद इन 7 डेज ऑब्जेक्शन फाइल किया, देन ही इज रिक्वायर्ड टू हियर यू, ही इज रिक्वायर्ड टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपको बोलना है कि क्यों ये अटैचमेंट जो है उसको वैकेट ना किया जाए। तो उसका आंसर आप लोग वहां पर देंगे विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर। यहाँ इस राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज में, और इससे आगे भी गुजरात हाईकोर्ट के भी जजमेंट है जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है कि इसका एक मैकेनिकल वे में इस सेक्शन का यूज हो रहा है डिपार्टमेंट के थ्रू, सेक्शन 83 का। ये जो प्रोविजन है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज की जानी चाहिए। इसका मैकेनिकल वे में हर जगह पर जब भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है आप सेक्शन 83 का यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 83 में ये जो राधा कृष्णन इंडस्ट्री वाला जो केस है उसमें ऐसा हुआ कि कमिश्नर ने पावर डेलीगेट कर दिए ज्वाइंट कमिश्नर को। ज्वाइंट कमिश्नर ने प्रोविजनल अटैचमेंट किया। 2 जगह पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि 2 चीजें बहुत ही गलत की है आपने, और ऐसे इस तरीके से आप नहीं कर सकते। उसमें 2 में पहली चीज ये है कि ज्वाइंट कमिश्नर ने क्यों अटैच किया। ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर नहीं है, द पावर्स आर गिवन टू द कमिश्नर। द ओपिनियन मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द कमिश्नर कि भाई द केस इज फिट फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट। डिपार्टमेंट का रेवेन्यू प्रिजुडिकली इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी तक डिटरमिनेशन नहीं हुआ है। 73 74 वाली या कोई भी और सेक्शन की जो डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स वाली जो सेक्शन है उसमें फाइनल टैक्स लायबिलिटी डिसाइड नहीं हुई है अभी तक। फिर भी आप बैंक अकाउंट या तो फिर मेरी कोई एसेट जो है उसको अटैच करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों जरूरी है, ये ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा, एटलीस्ट राइटिंग में इसको लिखना पड़ेगा आपको। और कौन ये ओपिनियन फॉर्म करेगा? कमिश्नर विल फॉर्म दिस ओपिनियन। दूसरा, जो रूल नंबर 159 सब रूल 5 में लिखा है कि भाई एन अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द टैक्स पेयर जब भी आप प्रोविजनल अटैचमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू ऐसी की गई कि ये डिस्क्रेशनरी प्रोविजन है, हमको देनी है तो हम लोग देंगे, हमको नहीं देनी अपॉर्चुनिटी तो हम लोग नहीं भी देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जब भी देने की बात आती है तो वो डिस्क्रेशनरी नहीं होती है। इसको आपको इंटरप्रेट करना है कि ये मैंडेटरी है। आपको हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी इन केस यू आर अप्लाइंग दिस सेक्शन 83। और दूसरा, इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, द ओपिनियन मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द कमिश्नर। दूसरा, इसके स्कोप को भी वाइडली एक्सपांड किया गया है थ्रू दिस फिनांस एक्ट 2021। ये जो सेक्शन 83 थी उसमें पहले ऐसा था कि भाई जो टैक्सेबल पर्सन है उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल होती थी। उसके अंदर उन लोगों ने ऐड कर दिया कि भाई कोई भी पर्सन है जो अबेटमेंट कर रहा है
अमेंडमेंट कर रहा है मतलब कि जो हेल्प कर रहा है इस टैक्सेबल पर्सन को, उसकी प्रॉपर्टी को भी प्रोविजनली अटैच कर सकता है। हालांकि ये जो नया अमेंडमेंट है वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन बार बार कोर्ट के बोलने के बावजूद कि इसको आप मैकेनिकल वे में यूज मत कीजिए, इसको एक्सेप्शनली ही यूज करना चाहिए, इसके स्कोप को भी वाइड करने का डिपार्टमेंट का प्लान है, और स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड इन मैकेनिकल वे। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है ऑन सेक्शन 83। इसके बाद की स्लाइड आते हैं। राधा कृष्ण इंडस्ट्री में क्या बोला है वो चीजें छोड़ देते हैं अभी हम लोग। हाँ, ये एक जजमेंट इंटरेस्टिंग है सेक्शन 83 के बारे में। रोशनी साया जायसवाल, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही एक केस गुजरात का मेरे पास भी आया था, ऐसा ही सेम फैक्ट्स। इसमें ऐसा हुआ किसके अंदर कि भाई ये जो रोशनी साना जायसवाल है, उनकी कोई कंपनी है जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अब इस कंपनी ने कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन किए हैं, ऐसा एक एलिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू आया और सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग वहां पर इनिशिएट हुई। सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई तो टैक्सेबल पर्सन कौन है? ये जो कंपनी है वो है। डिपार्टमेंट ने बैंक अकाउंट अटैच कर दिए कंपनी के भी और डायरेक्टर के। ये जो रोशनी साना जायसवाल है, दैट पर्सन इज अ डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर है उसने हर महीने 1-1 लाख रुपए की फीस भी ली है कंपनी में से। तो आर्ग्यूमेंट ये की गई डिपार्टमेंट के थ्रू इन द कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है कि भी ये डायरेक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और डायरेक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारी चीजों की आर्ग्यूमेंट की गई दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसी के ऊपर आप प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो। उसके डायरेक्टर के ऊपर है, किसी और पर्सन का बैंक अकाउंट या कोई और एसेट आप अटैच नहीं कर सकते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट की वजह से एक इंटरेस्टिंग रेशियो ऐसा है कि अगर कंपनी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग है और सेक्शन 83 एप्लीकेबल हो रही है तो भाई ऑटोमेटिकली कोई डायरेक्टर के ऊपर या उसके एम्प्लॉइज के ऊपर या उसकी एफिलिएटेड दूसरी फर्म के ऊपर, सिस्टर कंसर्न्स के ऊपर ऑटोमेटिकली 83 का प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं किया जा सकता। दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। हालांकि इसको अमेंड किया गया है थ्रू फिनांस एक्ट 2021, जो मैंने आपको पहले बोला कि जिसमें ऐसा अमेंडमेंट किया गया है कि भाई जो पर्सन अपडेट करता है, हेल्प करता है, उसको भी ये सेक्शन 83 एप्लीकेबल होगा। इस अमेंडमेंट को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, इसलिए हम लोग अभी बोल सकते हैं कि जिस पर्सन की प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसी का प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है, किसी और का नहीं। ऐसे ही कुछ जजमेंट्स मद्रास हाईकोर्ट का है, श्री मार्ग ह्यूमन रिसोर्सेस, यही चीज बोली गई है। काफी और भी जजमेंट्स थे, लेकिन इसको ज्यादा लंबा ना करने के लिए मैंने इतने जजमेंट्स 83 के बारे में रखे हैं। एक हमारे गुजरात हाईकोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है कॉस्मोल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का, और ये ऐसा जजमेंट है, स्लाइड नंबर 26 के ऊपर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है और इसका रेशियो काफी और जगह पर भी हेल्पफुल हो सकता है। शायद अगर आपको पता हो, एक गुजरात हाईकोर्ट का ही केस था मोहित मिनरल्स का। मोहित मिनरल वाले केस में गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि जो आईजीएसटी के रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन है, जिसमें ओशियन फ्रेट के ऊपर आईजीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज इज पेएबल, कोई पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है वो सर्विस दे रहा है अप टू द कस्टम पोर्ट, जो फ्रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं ओशन फ्रेट, तो उसके ऊपर जो इंपोर्टर है उसे रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी पे करना है, ऐसी एक नोटिफिकेशन की एंट्री थी। मोहित मिनरल वाले केस में गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई दिस एंट्री इज अल्ट्रा वायरस टू द बेसिक फाउंडेशन और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ। ये जो आईजीएसटी का जो बेसिक चार्जिंग सेक्शन है उसी में ये कवर नहीं होता है। इस तरीके की एंट्री आप आरसीएम में डाल ही नहीं सकते,
और गुजरात हाईकोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया, उस एंट्री को। अब उस एंट्री को स्ट्राइक डाउन करने के बाद क्या हुआ, जितने लोगों ने ओशन फ्रेट का पेमेंट किया था उसको वापस लेने के लिए दे फाइल्ड अ रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54। अब अंडर सेक्शन 54 जब रिफंड एप्लीकेशन फाइल की गई, उस टाइम पे क्या हुआ, डिपार्टमेंट सेड कि भाई काफी केसेस में 2 साल का जो टाइम लिमिट है, 2 साल की जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है सेक्शन 54 में, वो आपका एक्सपायर हो चुका है। तो एज द टाइम पीरियड फॉर क्लेमिंग रिफंड हैज एक्सपायर्ड, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट गेट दिस रिफंड। अब इतना इंटरेस्टिंग जजमेंट गुजरात हाईकोर्ट का है यहाँ पर। गुजरात हाईकोर्ट ने जो रेशियो ले डाउन किया है यहाँ पर वो ऐसा है कि आपने गलती से टैक्स पे किया, which tax is otherwise not payable, जो आपको अदरवाइज पे नहीं करना था, तो उस सिचुएशन में उसका रिफंड लेने के लिए द टाइम लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग केयरफुली। इसको कितनी जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं और कितनी जगह पर ये हेल्पफुल हो सकता है। सेक्शन 54 में रिफंड क्लेम करने के लिए 2 साल की टाइम लिमिट है, 2 साल के बाद आप रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। जो यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट ने बोला वो ऐसा बोला है कि अगर ये सेक्शन 54 की टाइम लिमिट जो है 2 साल वाली, वो टाइम लिमिट अगर मैं पकड़ के रखूं, then it will be in violation of Article 265 of the Constitution. Article 265 of the Constitution is no tax can be levied without a clear charging section. तो अगर चार्जिंग सेक्शन ही वहां पर नहीं थी, मतलब कि आपने गलत टैक्स कलेक्ट किया है, आपके पास अथॉरिटी नहीं थी उस टैक्स को कलेक्ट करने की, वो टैक्स आपने कलेक्ट किया है। अब वो टैक्स कलेक्ट करके आप बैठे हैं और 3 साल के बाद ऐसा जो टैक्स है वो कोई आपसे वापस मांग रहा है, तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वापस मांगने का टाइम लिमिट तो चली गई। गवर्नमेंट कैन नॉट और द डिपार्टमेंट कैन नॉट कीप एनी अमाउंट विच इज अदरवाइज नॉट रिसीवेबल बाय इट। जहां पर लॉ में चार्जिंग सेक्शन ही कोई बोल रहा है, कोई कोर्ट बोल रही है कि चार्जिंग सेक्शन ही यहाँ पर फेल होती है, ये तो पेएबल ही नहीं था, और फिर भी आपने कलेक्ट किया है, then in that situation रिफंड के लिए जो टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इसको और जगह पर भी यूज कर सकते कि मैंने रॉन्गली पेमेंट कर दिया है टैक्स का। मान लीजिए कि टैक्स का पेमेंट मुझे करना था 12% से, लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया 18% से गलती से, तो क्या उस सिचुएशन में मैं इसका यूज नहीं कर सकता? कॉस्मोल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड गुजरात हाईकोर्ट का जो जजमेंट उसका कि भाई सेक्शन 54 की टाइम लिमिट भले ही चली गई, डिपार्टमेंट इज बाउंड टू पे बैक दिस अमाउंट because under article 265 department cannot keep this amount with it। तो ये जजमेंट भी आप सबको नोट डाउन करके रखने जैसा जजमेंट है गुजरात हाईकोर्ट का, कॉस्मोल एनर्जी प्राइवेट। हालांकि कुछ और हाईकोर्ट्स के जजमेंट्स ऐसे भी है कि 2 साल की टाइम लिमिट इस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगी, बट आई एम ऑफ द फर्म व्यू दैट द गुजरात हाईकोर्ट्स रेशियो, क्योंकि वहां पर बात की गई है आर्टिकल 265 की, बाकी जो हाईकोर्ट्स के जज है जहां पर बोला गया है कि 2 साल के बाद आपको रिफंड नहीं मिल सकता, वहां पर आर्टिकल 265 वाली बात नहीं है। तो आर्टिकल 265 जो है उसका रेशियो लेके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये जो जजमेंट है वो हमारी स्लाइड नंबर 27 तक चलता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर 107 एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील। अच्छा, आप में से काफी लोगों के केस में ऐसा हुआ होगा, अभी कल ही सर्कुलर आया है शायद डिपार्टमेंट का, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो काफी लोगों ने शायद वो ग्रुप में शेयर भी किया है। इसमें ऐसा है कि कोविड के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो काफी टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड किया, जिसमें बोला गया है कि सारी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जितनी भी है जिसमें टाइम लिमिट मेंशन की गई है उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं टिल फर्दर नोटिस। अब काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों के ये कंसर्न रहे, काफी लोगों ने मुझे फोन भी किया था उस टाइम पे
कि भाई हमने अपील फाइल की विच इज अ बिलेटेड अपील। हमारी जो अपील थी वो बिलेटेड अपील थी, 4 महीने के बाद की अपील थी, क्योंकि पहले हाई कोर्ट्स के ऐसे जजमेंट थे कि भाई 4 महीने के बाद तो आप अपील फाइल कर ही नहीं सकते, क्योंकि कमिश्नर अपील के पास पावर ही नहीं है कि वो इतनी बिलेटेड अपील को एडमिट कर पाए। तो हम जब ये अपील फाइल करने जाते हैं मेनली फॉर द पर्पस ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो मेरा सेक्शन 30 वाला जो है उसका टाइम लिमिट चली गई, इसकी वजह से वो रिजेक्ट हुआ। अब मुझे अपील में जाना है। अब मैं अपील में गया, वहां पर भी 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो कमिश्नर इज नॉट रेडी टू एडमिट दिस अपील, सेइंग दैट इट इज टाइम बाउंड। आई सेड कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इट इज क्लियरली एप्लीकेबल, कि यहाँ पर आपको ये अपील एडमिट करनी पड़ेगी, ये अपील एडमिट करनी चाहिए। वहां पर जो अपीलेट अथॉरिटी है उनका स्टैंड ऐसा था कि भाई हमने एक लीगल ओपिनियन मांगा है, और हमें ऊपर से जब इंस्ट्रक्शन आएगी, जो इंस्ट्रक्शन कल आई है सर्कुलर के थ्रू, अभी कल की बात कर रहे हैं हम लोग, 20 जुलाई को जो सर्कुलर इश्यू हुआ है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जब आएगी तब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। आई रिमेम्बर कि भाई 3-4 महीने पहले की ही ये बात है, जो महसाणा वाले काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त थे, उनके केसेस में ये सारी चीजें थी, और उन्होंने अथॉरिटी दी मुझे, और मैंने ये केस रिप्रेजेंट किया। और जो अपीलेट अथॉरिटी का स्टैंड था वहां पर कि भाई हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये टाइम लिमिट हमको एक्सटेंडेड माननी है या नहीं माननी है। देयर द आर्ग्यूमेंट आई मेड वाज वेरी क्लियर। आई कोट आर्टिकल 142 of the constitution which said that once supreme court extends any time limit, अच्छा सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इश्यू किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट एक्सटेंड की, इसलिए हम लोग टाइम लिमिट एक्सटेंड करते हैं। कर्नाटका में जो स्टेट जीएसटी है उन्होंने एक सर्कुलर इश्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट एक्सटेंड की है, इसलिए हम लोग टाइम लिमिट एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ गुजरात जीएसटी डिपार्टमेंट हमको ऐसा बोल रहा है कि भाई जैसे सीबीडीटी में सर्कुलर आया, जैसे कर्नाटका स्टेट डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इश्यू किया, वैसा सर्कुलर गुजरात में कहीं इश्यू नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से हम लोग अभी इस अपील को एडमिट नहीं कर सकते। द आर्ग्यूमेंट आई मेड वाज वेरी क्लियर that the suo moto order passed by Supreme Court is passed by using the powers given to Supreme Court under Article 142, and Article 142 very clearly says that the order passed by Supreme Court under Article 142 is considered as law of land. It will override all the laws of the country. सीबीडीटी को कोई सर्कुलर इश्यू करने की जरूरत नहीं है, कर्नाटका स्टेट डिपार्टमेंट को कोई सर्कुलर इश्यू करने की जरूरत नहीं है। There is no need to issue any circular. This is considered as law of land. And naturally the commissioner appeal got convinced, और सारे लोगों के जो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए थे सबके रजिस्ट्रेशन उन्होंने अपील को एडमिट करके कैंसिलेशन को रिवोक कर दिया। अब ये जो सर्कुलर आया है वो कल आया है, और जो अपील एडमिट की मैं बात कर रहा हूँ वो 1-2 महीने पहले की बात है। तो नेचुरली कई बार ऐसा होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट से आगे वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन हो सकता है सर्कुलर के थ्रू, बट इट वाज द ऑर्डर पास्ड अंडर आर्टिकल 142। वी नीड टू रिमेंबर दिस आर्टिकल 142 व्हिच इज सेइंग दैट। और ये कल का सर्कुलर है उसमें भी मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन, जहां पर बोला गया कि क्वासी जुडिशियल जो है रिफंड फाइलिंग के एप्लीकेशन और ये सारी जो चीजें हैं उसको ये सुप्रीम कोर्ट वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, नेचुरली एप्लीकेबल होगी। क्योंकि जब मैंने ये अपील फाइल की थी बिफोर 1.5 months, तब मैंने उस अपील मेमोरेंडम में क्लियरली लिखा था मीनिंग ऑफ क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, और वहां पर ये जो रिफंड है, एडजुडिकेशन है, हर एक चीज एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एक्साइज इज कंसीडर्ड एज क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो कल का जो सर्कुलर है वो भी अल्ट्रा वायरस है। अपील के लिए तो उन्होंने एक्सटेंड किया ही किया है, वो तो ठीक है। अब एक्सटेंड करना क्या है, उसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि अपील के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी, लेकिन उन्होंने बोला है कि एडजुडिकेशन के लिए नहीं होगा, रिफंड के लिए नहीं होगा, जो चीज मेरे ओपिनियन में बिल्कुल गलत है। इट इज क्लियरली इन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 142, क्योंकि एडजुडिकेशन, रिफंड, ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के काफी है। सो सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो ऑर्डर है उसमें क्लियरली लिखा है कि भाई टू ऑल द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल
proceedings this order will be applicable. So this is also we need to remember. एक और जगह पर काफी दिक्कत हमारे कंसल्टेंट दोस्त फेस करते हैं कि भाई जब मैं अपील फाइल करता हूं, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट वाला तो अभी कोविड की वजह से आया, लेकिन ऐसा ये जो रूल है, जो रूल नंबर 108 है, उसमें ऐसा है कि भाई आपने जब अपील फाइल की उसके 7 दिन में जो ऑर्डर है जिसके सामने आप अपील फाइल कर रहे हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी अपीलेट अथॉरिटी को। नॉर्मली ये कोई नहीं करता है, अपील फाइल कर देते हैं लेकिन सर्टिफाइड कॉपी हम लोग 7 दिन के अंदर जो भेजनी है वो नहीं भेजते। तो अच्छा गुजरात में तो ऐसे केसेस नहीं आए हैं कि जिसकी वजह से वो अपील रिजेक्ट हुई हो कि आपने 7 दिन में सर्टिफाइड कॉपी नहीं भेजी, लेकिन बाकी स्टेट्स में काफी जगह पर ये सर्टिफाइड कॉपी ना मिलने की वजह से अपील को रिजेक्ट माना गया। उस रूल में ऐसा बोला गया है कि 7 दिन में अगर आप वो सर्टिफाइड कॉपी अगर दे देते हैं तो जिस तारीख को आपने अपील फाइल की है वो तारीख गिनी जाएगी अपील फाइल की, और अगर 7 दिन में नहीं भेजते हैं तो जिस तारीख को आप सर्टिफाइड कॉपी भेजोगे वो तारीख मानी जाएगी। अब मान लीजिए कि जब मैं सर्टिफाइड कॉपी भेज रहा हूं उसमें 4 महीने खत्म हो गए, अगर 4 महीने खत्म हो गए हैं तो अथॉरिटी विल से, कमिश्नर अपील विल से कि भाई ये तो टाइम बढ़ हो गया, मैं एडमिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट का जजमेंट है वो ऐसा है कि ये जो रिक्वायरमेंट है रूल नंबर 108 की कि सर्टिफाइड कॉपी भेजनी है, ये हाइपर टेक्निकल है, और ऐसी हाइपर टेक्निकल रिक्वायरमेंट की वजह से यू कैन नॉट डिनाई एडमिटिंग द अपील, आपको अपील को एडमिट करना पड़ेगा। मतलब मैंने अगर सर्टिफाइड कॉपी नहीं भेजी है तो भी अपील शुड बी एडमिटेड। दिस इज व्हाट द रूलिंग गिवन। अच्छा जो ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों ने फेस किया है वो ऐसा है कि एक बार ऑर्डर आ जाता है सेक्शन 75 का, 74 की प्रोसीडिंग के बाद, फिर जब हम लोग अपील फाइल करते हैं तब 10% का हम लोग पेमेंट करते हैं। 10% का जब हम लोग पेमेंट करते हैं, अच्छा ये कौन सी स्लाइड पे मैं एक बार आपको बता दूं जो इश्यू है वो, ये स्पीकिंग ऑर्डर वाली चीजें और ये सब वही चीज है, तो मैं इसको अभी थोड़ा स्किप कर देता हूं। अच्छा प्री डिपोजिट वाली जो बात है, ये है स्लाइड नंबर 31, झारखंड हाईकोर्ट। इसमें ऐसा है, यहाँ पर काफी लोगों की दिक्कत ये है कि ये 10% भरने के बाद भी रिकवरी कंटिन्यूएशन में रहती है। कई बार डिपार्टमेंट ने ऐसा स्टैंड लिया है कि भी आपने 10% भरा, इसका मतलब ये है कि जिस स्टेटस को हमने जो अटैच किया है वो अटैच भी रहेगा, हमने जितना रिकवर किया है वो रिकवरी चालू ही रहेगी हमारी। नहीं, सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 में आपने 10% प्री डिपोजिट की तो सेक्शन 107 सबसेक्शन 7 आपको ऐसा बोल रहा है कि यू आर गेटिंग एन ऑटोमेटिक स्टे। इसके लिए आपको स्टे के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एनी स्टे। एक बार अपील फाइल कर दी आपने, 10% डिपोजिट भर दी, दैट मीन्स अंडर सेक्शन 107 सबसेक्शन 7 यू आर गेटिंग एन ऑटोमेटिक स्टे। दिस इज व्हाट इज क्लियरली रिटन। ये झारखंड हाईकोर्ट का भी जजमेंट है और दूसरा ओडिशा हाईकोर्ट का जजमेंट। अच्छा ये जो ओडिशा हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो एक्चुअली टैक्स पेयर की फेवर में नहीं, अगेंस्ट में है, लेकिन इसका जो रेशियो है वो हमारी फेवर में, इसलिए मैंने इस जजमेंट को लिया है। वहां पर जो है ये टैक्स पेयर का जो उत्कर्ष उद्योग है उसका कंटेंशन ऐसा था कि भाई मुझे ये वेव करके दो 10%, ये 10% में ना भरूं तो चलेगा। तो ओडिशा हाईकोर्ट ने बोला कि 10% भरने वाली जो कंडीशन है वो मैंडेटरी है, और ये 10% भरते ही आपको ऑटोमेटिक स्टे मिल रहा है। स्लाइड नंबर 32 पे हम लोग, आपको ऑटोमेटिक स्टे मिल रहा है। तो एज द ओडिशा हाईकोर्ट हैज सेड कि ऑटोमेटिक स्टे है, जो क्लियरली लॉ में भी लिखा है, दैट्स व्हाई दिस जजमेंट आई हैव टेकन कि अगर कोई डिपार्टमेंट ऑफिसर आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको सीधा ही स्टे नहीं मिलेगा, देन इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्टैंड। ओके, अब कुछ और चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे भी 6:45 हो चुके हैं। सेक्शन 129 जो ई-वे बिल वाली चीजें हैं, ई-वे बिल में मेरी खुद की 10 अपील जो मैंने फाइल की, ऐसी भी 10 अपील पेंडिंग है अभी भी। तो ई-वे बिल में काफी डिबेटेबल इश्यूज हैं।
बट ईवे बिल का कभी और हम लोग सिर्फ ईवे बिल का ही सेशन लेंगे, ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू टेक द क्वेश्चन आंसर सेशन. 7 o'clock तक का ही टाइम है हमारे पास. सो लेट मी क्लोज हियर. आपको कोई क्वेश्चन है तो हम लोग पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं. કોઈ એવી કેસ લો ખરો કે જેમાં પ્રી ડિપોઝિટ વગર આપણે કોઈ અપીલ ફાઇલ કરી શકીએ કે પ્રી ડિપોઝિટ ઇઝ મસ્ટ? જીએસટી માં કે સર્વિસ ટેક્સ હા, માં? જીએસટી For GST, બંનેમાં. the present situation in GST is the pre-deposit is must. ઓકે. અને સર્વિસ ટેક્સ માં પણ પ્રી-ડિપોઝિટ વેવર નો ઓપ્શન સર્વિસ ટેક્સ માં છે. અચ્છા. એવો ઓપ્શન જીએસટી માં નથી, પણ સર્વિસ ટેક્સ માં વેવર નો એટલા માટે પ્રશ્ન નથી આવતો કારણ કે પ્રી-ડિપોઝિટ 7.5% છે ખાલી, ચિંતનભાઈ. હા, એ તો છે 7.5% છે, પણ તોય એટલે ઓપ્શન છે ખરો, પાવર છે ખરા? In service tax the powers are there. In service tax the powers are there. In GST such powers are not there. એટલે અત્યારે ઓરિસ્સા હાઈકોર્ટ નું જજમેન્ટ છે ને, જે આપણી સ્લાઇડ નંબર 33 ઉપર કે 32 ઉપર, હા 32 ઉપર, એમાં ઓરિસ્સા હાઈકોર્ટ ક્લિયરલી સેઝ કે ભઈ આ મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે. સો ફાર એઝ જો તમે અગર જોશો ને તો લખ્યું છે કે હેલ્ડ ધેટ સેક્શન 107 ઓફ ધ Orissa GST Act is mandatory provision. There is no discretion with the appellate authority to waive the requirement of pre-deposit. ઓકે. Even એમાં બહુ આગળ જઈને લખે છે કોર્ટ, even this court cannot direct the appellate forum to do so. ઓકે. એટલે રીટ ઓફ મેન્ડેમસ ફાઇલ કરી હોય આપણે કે ડિરેક્શન માંગીએ છીએ કે ભાઈ કોર્ટ ડિરેક્શન આપે કે ભાઈ આવું કહો તમે ઓથોરિટીને, સો ધેટ કેન ઓલ્સો નોટ બી ડન. This is what Orissa High Court has said. એટલે 10% ભરવાના છે, ભરવાના જ છે. ઓકે. 10% બેઝિક ટેક્સ ના, નોટ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ પેનલ્ટી. ઓકે. અને 7.5% સર્વિસ ટેક્સ માં છે, એમાં પણ બેઝિક ટેક્સ ના 7.5%. યસ, સર્વિસ ટેક્સ માં જો સર્વિસ ટેક્સ માં એવું છે કે ઓર્ડર તમારો ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ પેનલ્ટી નો હોય તો બેઝિક ટેક્સ ના 7.5%, અને ઓર્ડર ફક્ત પેનલ્ટી નો હોય તો પેનલ્ટી ના 7.5%. ઓકે. ગોટ ધેટ. સમજે. એક છે ને મારી જોડે એક એટલે મેં એક અપીલ ફાઇલ કરી હતી ને સર્વિસ ટેક્સ ની, એમાં આવી રિક્વેસ્ટ નાખી, તો એમાં એ લોકોએ છે ને, આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ ઇટ વિથ યુ. તો ઓકે. ચિંતનભાઈ તમારો અવાજ બહુ ધીમે આવે છે, મને જ ખાલી ધીમે આવે છે. એવું લખ્યું છે કે સેક્શન 35F પ્રમાણે કે you cannot 35 section 35F of the Central Excise Act 1944 clearly નહીં, 35F માં 35F of the Finance Act 1994 આવશે. ના, Central Excise Act 1944 ચિંતનભાઈ તમારો અવાજ બહુ ધીમો આવે છે. હા, સેક્શન 35F of Central Excise Act 1944 એનો રિટર્નમાં આન્સર આપ્યો છે તમને કે કેન નોટ બી વેવ્ડ. હા, રિટર્નમાં આન્સર આપ્યો છે. એઝ પર માય ઓપિનિયન મને એવું યાદ છે કે સર્વિસ ટેક્સ માં એવા જજમેન્ટ્સ છે કે જેમાં ધીસ પ્રી ડિપોઝિટ કેન બી વેવ્ડ. અચ્છા. ઓકે. બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધેર ઇન જીએસટી. ઓકે. સમજી. એટલે આમાં ટ્રાય કરીએ તો કદાચ વેવર મળી શકે ખરું. એક પ્રીમા ફેસી આપણા ફેવરમાં હોય કેસ તો મળી શકે. ઓકે. સર્વિસ ટેક્સ ની જ વાત છે ચિંતનભાઈ અત્યારે. હા, આ સર્વિસ ટેક્સ ની વાત છે. મેટર એવી જ છે, પ્રાઇમા ફેસી આપણા ફેવરમાં છે, એટલે જ આપણને ઓલી પ્રી ડિપોઝિટ નથી. પ્રી ડિપોઝિટ ની રકમ ખાસી મોટી થાય છે. અચ્છા. ઓકે. સમજી. ઓકે. Yes, anything else? Tomilbhai, questions now, so we can close here. ચિંતનભાઈ બીજા કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જજમેન્ટ તમને બ્રિજેશભાઈ લેવા જેવા રાખતા હોય તો ચિંતનભાઈ અવાજ નથી આવતો. હા,
બ્રિજેશભાઈ બીજા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જજમેન્ટ તમને લેવા જેવા લાગતા હોય તમે લઈ લો, કારણ કે કદાચ લોકો અમુક પાછા કંઈક પ્રશ્નો નહીં હોય અથવા કે પૂછતા થોડા શરમાતા હોય એવું કંઈક પણ અચ્છા, હોય ઓકે તો ઓકે હા, તો બાકીનું તમારું જે એક છે પ્રેઝન્ટેશન ને, હા, એક મને એવું ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે, આપણી પાસે 7 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ છે, તો થોડુંક 129 નું ડિસ્કશન કરી લઈએ. હા એક્ઝેક્ટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર છે. ઈ-વે બિલ, this 129 has created a havoc. 129, what happens is, in case of section 129, whatever cases I have actually faced, let's say you are having an invoice, you have an e-way bill, everything is there, name is mismatched in e-way bill and invoice, or let's say some address is mismatched, or e-way bill has just expired because of some delay in the transportation, etc. In all this situation, what happens is the mobile squad actually is exercising these powers under section 129. Your conveyance is intercepted. They will ask for this invoice copy, e-way bill copy. Now, once you are showing the e-way bill copy and the invoice copy, in that situation, what happens is, if there is any discrepancy, in that situation, straight away they exercise or they invoke this section 129. वो सीधा section 129 इन्वोक करते हैं, और 129 की ट्रेजेडी ऐसी है कि आपको टोटल 200% टैक्स पे करना पड़ता है. 100% टैक्स एंड 100% पेनल्टी, मतलब टोटल आपकी जेब में से जो जाता है वो है 200%. और जब तक आप उसको पे नहीं करते हैं अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 2, तब तक जो आपके जो कन्वेंस को उन लोगों ने इंटरसेप्ट किया है उसको वो रिलीज नहीं करते. So in most of the situation what happens is कि हम लोग पहले पे कर देते हैं कि भाई सबसे पहले मुझे तो बिजनेस अपना कंटिन्यूएशन में रखना है, तो ये पे करके मेरे गुड्स को तो छुड़ाना पड़ेगा सबसे पहले. उसके बाद में हम लोग अपील फाइल करते हैं. कोई भी आप आर्ग्यूमेंट करो मोबाइल स्क्वाड के सामने, मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दे आर नॉट कन्विंस्ड एंड दे एक्सरसाइज द पावर्स अंडर 129. दिस इज द सिचुएशन. तो 129 में हमारी रेस्क्यू में जो जजमेंट्स आ सकते हैं वो स्लाइड नंबर 34 में एक है, सत्यम शिवम पेपर्स का एक जजमेंट है. इसमें ऐसा है कि भाई भले ही आपका ई-वे बिल एक्सपायर हो गया है, लेकिन टैक्स इवेशन नहीं है, कहीं पर भी ऐसी कोई चीज नहीं है, तो 129 एक्सरसाइज नहीं कर सकते. दूसरा ऐसा ही एक जजमेंट है अग्रवाल इंडस्ट्रीज का. ये दोनों रिसेंट है इसलिए मैंने लिया आंध्र प्रदेश का. ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है. वहां पर भी ऐसी ही सिचुएशन है. वहां पर तो ऐसा था कि भाई एड्रेस और नाम किसी और पर्सन का लिख दिया था कंसाइनी की जगह पर, तो भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला है कि वहां पर भी यू कैन नॉट एक्सरसाइज 129. दिस इज व्हाट हैज बीन सेड. और एक जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है जजमेंट, आई थिंक फरवरी में आया था, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है रॉबिन्स ट्रेंचलेस टनल्स. ये जजमेंट है. उसमें तो कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि जब आपके पास ई-वे बिल है तो उस सिचुएशन में 129 एक्सरसाइज हो ही नहीं सकता. अगर ई-वे बिल नहीं है फिजिकली अवेलेबल, फिजिकली या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ओनली देन यू कैन गो फॉर 129. दिस इज व्हाट द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट. इसको इसलिए नहीं लिया है मैंने यहाँ पर क्योंकि वो फरवरी का या जनवरी का जजमेंट है. ये सारे लेटेस्ट जजमेंट यहाँ पर लिए हैं. आप उसका साइटेशन लिख सकते हैं, रॉबिन्स ट्रेंचलेस टनल्स प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट. सो दिस जजमेंट्स कैन बी ऑफ रेस्क्यू. मुझे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि इतने सारी मेरी खुद की अपील, मतलब कि मेरे पास जितनी बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू जो केसेस आए और जो मैंने अपील फाइल की है, ऐसी इतनी सारी अपील ई-वे बिल की पेंडिंग है गुजरात में स्पेसिफिकली. तो मुझे ऐसा बताया गया है कि भाई more than 250 appeals are pending on e-way bill only 129 के ऊपर ही. और अभी एक एसओपी बना रहा है गुजरात में, और एसओपी बनने के बाद ही इन अपील्स को सुना जाएगा. तो अभी कोई भी अपील हियरिंग पे नहीं आएगी, ऐसा इनका स्टैंड है गुजरात अपीलेट अथॉरिटी का इस टाइम पे, जिसके सामने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी हमने दिया है कि भाई यू नीड टू कंसिडर दिस अपील. सो आपको ये अपील को हियरिंग पे लेना चाहिए अभी, क्योंकि काफी टाइम से पेंडिंग है. इतनी सारी अपील, इतना सारा टैक्स लोग पे करके बैठे हैं, और ये अभी रिप्रेजेंटेशन
जस्ट 2-3 दिन पहले ही हमने दिया है. लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस. कुछ अपील हमने राजस्थान में भी फाइल की. राजस्थान का केस तो ऐसा इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने राजस्थान का ही जीएसटी नंबर दे दिया और राजस्थान में ही टैक्स पे करवा दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी राजस्थान का. और गलती क्या निकाली उन्होंने? गलती ऐसी निकाली कि भाई ईवे बिल जो है आपका जनरेट हुआ है 1 जनवरी को, और सॉरी इनवॉइस जो जनरेट हुआ है 1 जनवरी को जनरेट हुआ है, और ईवे बिल जो आपने बनाया है वो 3 जनवरी का है. दोनों की डेट में मिसमैच है. अब अगर आप सेक्शन 31 देखो तो इनवॉइस तो गुड्स की डिलीवरी से पहले कभी भी बना सकते हैं. देयर इज नॉट एट ऑल एनी वायोलेशन. वायोलेशन की तो बात ही नहीं है. कोई प्रोसीजरल लैप्स भी नहीं है. इसको तो हम लोग प्रोसीजरल लैप्स भी नहीं बोल सकते. स्टिल द ह्यूज पेनल्टी अमाउंट इज रिकवर्ड. मुझे पता नहीं है कि 90,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ की जो अमाउंट हर महीने का कलेक्शन दिखा रहा है उसमें ये 129 वाला है कि नहीं, बिकॉज एज पर माय ओपिनियन ये सारा गलत कलेक्शन है विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड. पर ट्रेजेडी सिर्फ इतनी है कि बिना टैक्स पे किए मैं अपने गुड्स को छुड़वा नहीं सकता, अपने कन्वेंस को छुड़वा नहीं सकता, और वो पे करने के बाद ही अपील हम लोग फाइल कर सकते हैं. और गुजरात में अभी हियरिंग पे अपील्स नहीं है. हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है. लेट्स होप कि नेक्स्ट वीक तक सारी अपील्स की हियरिंग शुरू हो जाए. तो ये 129 वाला इश्यू बर्निंग इश्यू था. सो आई थिंक 7 बजे तक का टाइम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो चिंतन भाई, शुड वी क्लोज और इज देयर एनी क्वेश्चन? મને સર્વિસ ટેક્સ માં કઈ વેવર વાળું કઈ મળે તો સર મને ઓકે, ડેફિનેટલી. બ્રિજેશ ભાઈ, યસ રોમિલ ભાઈ. આમાં જે પેનલ્ટી 129 માં જે પેનલ્ટી ને ટેક્સ લે છે એ ટેક્સ ની ક્રેડિટ તો ના મળે ને? ના, બિલકુલ નહીં મળે. ડબલ ટેક્સ થવાનો? ડબલ ટેક્સ એટલે એકચ્યુઅલી છે ને સેક્શન 129 માં પણ ફિનાન્સ એક્ટ 2021 થી અમેન્ડમેન્ટ કર્યું છે. 120 માં શું લખ્યું છે કે 100% ટેક્સ અને 100% પેનલ્ટી એવું લખ્યું છે. હા, હવે એકચ્યુઅલી ટેક્સ જે છે ટેક્સ છે જ નહીં, એ પેનલ્ટી જ છે. ઓકે. કારણ કે તમે નોર્મલ જ્યારે સેલ કરો છો ત્યાં તો ટેક્સ ભરો જ છો. પાછો 129 નો બીજો ટેક્સ અને પેનલ્ટી થયો, એટલે 200% થયા. એ વર્ડ્સ ને ચેન્જ કરીને એમણે કરી નાખ્યું છે 200% પેનલ્ટી. એવા વર્ડ્સ કરી દીધા છે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2021 માં. એટલે ટેક્સ નામનો શબ્દ આવે જ નહીં 129. એટલે પેનલ્ટી 200%. એટલે 200% પેનલ્ટી હકીકતમાં છે. આનું અગર તમે ઓપરેશનલ મિકેનિઝમ જુઓ 129 નું તો એવું જ છે કે જે 100% ટેક્સ બીજો ભરો છો પેનલ્ટી જ છે. હા, એટલે સપોઝ હું 100 રૂપિયા વસ્તુ વેચું છું ને 18 રૂપિયાનો ટેક્સ છે એની ઉપર, તો 18 તો મેં ભર્યા પહેલા, પણ બીજા 36 ભરવાના મારે. હા, બીજા 18 નહીં, બીજા 36. એટલે પહેલા 36 અને બીજા 18 તો ઓરિજિનલ છે ને છે. ઓરિજિનલ 18 છે તો છે, એની તમે ક્રેડિટ આપો કે જે કરવું હોય કરો, એ બધી વસ્તુ નોર્મલ. બરાબર. પણ આ 36 તમારા ગયા એક્સપેન્સમાં P&L માં ડેબિટ કરી દેવાના. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન. એટલે ટેક્સ નામનો શબ્દ વપરાયો છે એટલે હાઈકોર્ટમાં પિટિશન્સ પેન્ડિંગ છે કે આ બી ટેક્સ ને પાછો પેલો ટેક્સ, બંને ટેક્સ કેવી રીતે? હા, ડબલ ટેક્સ થાય છે. એટલે ફિનાન્સ એક્ટ 2021 માં આ પ્રશ્ન ના આવે એટલા માટે લોકોએ અમેન્ડમેન્ટ કર્યું છે કે હવે એક શબ્દ જ નહીં, 200% પેનલ્ટી. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન. Thank you, Brijesh bhai. Yes, thank you very much, sir. Now I request BK Chawla sir for the vote of thanks. Thank you, Brijesh bhai. As usual, ખૂબ જ મજા આવી અને એકદમ બધા જ લેટેસ્ટ જજમેન્ટ સાહેબ તમે જે શેર કર્યા. I think the major burning issues, all burning issues are covered, and we are having at least 2-3 judgments in each section, so that at least we can sit before the officer and discuss with him whether they will accept it or not is a different issue. Because sir, what sir you already discussed, they are asking that however we are submitting the judgment, they are asking that nothing is communicated to us from our higher authority. They are not how to convince them, sir. When sir actually તમે મને જો 2 મિનિટ આપો તો આમાં હું તમને કહું, આમાં actually આજે અપીલ નો એક્સટેન્શન નો સ્પેસિફિક ઇશ્યુ થયો.
આપણા ગાંધીનગરના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઘણા બધા મિત્રો જે આ જ પ્રશ્ન લઈને આવ્યા હતા. મહેસાણામાં તો ફોર્ચ્યુનેટલી એવું થયું કે એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સે કીધું કે ભાઈ તમે હેન્ડલ કરો, આ તો અમારું માનતા જ નથી. એન્ડ એમણે મને ઓથોરિટી આપી અને એન્ડ આઈ રિપ્રેઝેન્ટેડ. વોટ હેપન્સ ઇન જીએસટી કે જીએસટી ના ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ જીએસટી માં નથી. હું જ્યારે આના માટે કે મારે એમણે સી વન્સ ધ અપીલેટ ઓથોરિટી સેઇંગ કે ભાઈ મારી પાસે ઉપરથી ઇન્સ્ટ્રક્શન નથી, તો અગર જે આગળના રિપ્રેઝેન્ટેટિવે જ કીધું છે એ જ અગર હું કહીશ તો મને એ જ જવાબ મળવાનો છે. સો વેન આઈ વોઝ રીડિંગ ધ થિંગ્સ કે ભાઈ વોટ કેન બી ધ આર્ગ્યુમેન્ટ હિયર, તો મને યાદ છે કે હું રાત્રે મોડા સુધી વાંચતો હતો. મારા વાઈફે મને કીધું કે તમે શું વાંચી રહ્યા છો? મેં કીધું એક જજમેન્ટ વાંચી રહ્યો છું. તો કે આમાં તો અયોધ્યાનો કેસ છે, યુનિયન કાર્બાઇડનો પેલો ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટનાનો કેસ છે, એ તમે અરે જીએસટી સાથે શું લેવા દેવા છે? I said કે I am reading the judgments on Article 142 because જે સુપ્રીમ કોર્ટનો સુઓ મોટો ઓર્ડર છે it is given by using Article 142. એટલે ઘણીવાર તમારે અલગ રીતે કન્વિન્સ કરવું પડે છે કે ભાઈ see you cannot say કે તમે departmental authority should obviously follow whatever is the higher authority's judgment, but higher authority is not higher than Supreme Court. સો અલ્ટિમેટલી થયું શું, આમાં ઘણીવાર આપણા રિપ્રેઝન્ટેશનની મેથડમાં ચેન્જ થઈ જતું હોય છે. પહેલા જે રિપ્રેઝન્ટેશન થયા એમાં એવું લખ્યું કે ભાઈ કર્ણાટકા સ્ટેટ જીએસટીએ એક્સટેન્શન આપ્યું છે, સીબીડીટી એક્સટેન્શન આપ્યું છે, એટલે મારી અપીલને પણ તમે એડમિટ કરો. સો નેચરલી ધ કમિશનર અપીલ વિલ સે કે ભાઈ એ લોકોએ આપ્યું છે પણ ગુજરાતમાં ક્યાં આપ્યું છે? હવે ઘણીવાર આપણી પોતાની આર્ગ્યુમેન્ટ આપણી અગેન્સ્ટમાં જતી હોય છે. What I said is કે ભાઈ મારે જરૂરત જ નથી, એની વાત જ નથી કરવી. I am only talking about Article 142. So whether you want to do the contempt of Supreme Court or not, that is the only question. If you are not admitting my appeal, that is clear cut the violation of Article 142, which is clearly contempt of the apex court of India. So these kind of things happens. એટલે મારું તો બધાને સજેશન એ જ છે કે જીએસટી ના ઘણા બધા પ્રશ્નોના કે જે પણ આપણે ફેસ કરીએ છીએ એના જવાબો કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં છે અને બીજા ઘણા જૂના એક્ટ્સમાં પણ છે. સો ધેટ મસ્ટ બી યુઝડ. સ્ટેટ લેવલ આપણી હાઈકોર્ટના જજમેન્ટમાં બી આ લોકો એવું કહેતા હોય તો એમાં શું કહી શકીએ? એમાં સર તમે અગર સી ઇફ યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ અપલોડ ધીસ થિંગ્સ ઓન યુટ્યુબ. અચ્છા, ઉભા રહો, હું રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દઉં. કેમ કે આ કેવું છે સાહેબ, આ મુદ્દો ખોલ્યો છે તો ડિસ્કસ તો કરી લઈએ. હા બિલકુલ. Thank you, Brijesh bhai. Thank you for giving such a lucid and detailed explanation. And I think you covered all the sections which are more or less burning issues, and also given multiple judgments, and that to latest judgments. So we are definitely it is going to help to all our members in their day-to-day practice. And thank you, Romil bhai, for controlling the whole meeting. Thank you all the members for giving patience hearing. Thank you, Chintan bhai, for this controlling our this technical problem come across during the course of our the seminar. Once again, thank you, Brijesh bhai. Thank you all the friends. But one important announcement what I would like to declare here is that our FRRB is our national body, one of the committee of our institute, and this Aniket bhai is chairman of the same. So on the 28th of this month, we are planning one seminar, physical seminar. Almost the venue is fixed, and that is too in our sector 21. So within today or tomorrow, we will just give one link, and everybody required to register on that. And that is physical program, post session, post lunch. So we will be taking dinner at the evening together. And the detailed information and everything, registration link, everything will be shared in couple of days. So all members are requested to get registered on the same, because after a long time we are going to meet physically, and that too of our Central Council member and chairman of our FRRB. So please spare your time on the 28th post lunch. So we are meeting on that day also. Thank you again, Brijesh bhai. Thank you, members. Thank you.